تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، کفر نے پھر اٹھایا تھا فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، کفر نے پھر اٹھایا تھا فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، دیکھتے دیکھتے چاند شب ہو گیا، جب نبی نے کہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا، دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دل سے کلمہ پڑھا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، گمشدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، گمشدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی تیرگی میں اجالا کیے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق
بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. شو اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے, نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. سچ کہا اللہ تعالیٰ نے. محترم اساتذہ اکرام, ذمہ دار علمین ایجوکیشن سوسائٹی اور سابق طلبہ علمین اسکول, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے بھی آپ کے سامنے سورۃ العصر جو قرآن مجید کی مختصر اور جامع سورت ہے اس کی تلاوت و ترجمہ ہی آپ کے سامنے. اب اس کے بعد وہ نظم جو علامہ اقبال نے لکھی تھی, بانگ درا کی نظم ہے, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. علمین کی فضاؤں میں گونجنے والی وہ دعائیہ نظم جسے جماعت نہوم کی طالبات پیش کریں. درج کرتا ہوں یہ جب دعا پڑھی جاتی ہے تو سب کھڑے رہتے ہیں. اس بریک کو محسوس کیجیے کہ صبح صبح ہم اسکول میں آتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے تھے. آپ کے تحت شعور میں بھی موجود ہے. میرا خیال ہے آپ اس کے اندر اپنی آواز بھی چلائیں. میری گزارش, الحمدللہ سب کے سب کھڑے ہیں تو بچیوں اب آپ کے ساتھ السلام علیکم. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو تڑپا دے, جو روح کو تڑپا دے. پھر وادی خانہ کے ہر سرے کو چمکا دے, پھر شوق تماشا دے, پھر شوق تقاضا دے. محروم تماشا کو پھر دینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل. اس شہر کے خوبر کو پھر اسرت صحرا دے. پیدا دیروں میں پھر شورش محشر کر. اس محفل خوری کو پھر شاہد لیلا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ دار محبت دے جو چاند کو شرما دے. رفعت میں مقاصد کو خندوش سریا کر. خودداری ساحل دے, آزادی دریا دے. بے ناز محبت ہو, بے پاک صداقت ہو. سینوں میں اجالا کر دل صورت نینا دے. احساس عنایت کر آثار مصیبت کا. امروز کی شورش میں اندیشہ پردہ دے. میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا. تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو جاتا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. جزاک اللہ. کہ کچھ طلبات ہیں جو ذمہ داران سوسائٹی کی گلگوشی کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں فیض الرحمان کو مدعو کروں گا کہ وہ آئیں اور علمین ایجوکیشن سوسائٹی کے معتمد سیکریٹری صاحب الحاج شیخ محمد اکبر صاحب کی گلگوشی کریں.
ہاشمی سید نعمان تشریف لائیں، وہ علوی ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر صاحب ڈاکٹر عیسیٰ خان صاحب کی دلکشی کریں. ہاشمی نعمان. راشد سلیم تشریف لائیں، آپ نائب صدر ہاشمی سید ارشد صاحب کی گلگوشی کریں. راشد. الیاس، آپ ہاشمی سید سلیم صاحب جوائنٹ سیکرٹری صاحب کی گلگوشی کریں. علمی ایجوکیشن سوسائٹی کے جوائنٹ سیکرٹری صاحب کی گلگوشی کریں. مجاہد، تھوڑا ادھر دیکھو. بگول جائے سر، ادھر تھوڑا فوکس ہے. مجاہد اسٹیج پر تشریف لائیں. آپ شیخ قیام الدین صاحب علمی ایجوکیشن سوسائٹی کے فاضل ہیں، آپ کی گلگوشی کریں. استاد کشاف. استاد ذیشان عامر خلیل. استاد کاشف کے دیگر ساتھی اسٹیج پر آئے. آپ باری باری علمی ایجوکیشن سوسائٹی اور علمی ثانوی و اعلیٰ ثانوی اسکول کے سابق صدر مدرسین کی گلگوشی کریں گے. سب سے پہلے میں علمی ایجوکیشن سوسائٹی کے معتمد جناب الحاج شیخ محمد اکبر صاحب کو بٹیک دیں گے. استاد ذیشان. اس کے بعد استاد کشف نائب صدر جناب ہاشمی سید ارشد صاحب علمی ایجوکیشن سوسائٹی کو بٹیک دیں گے. استاد کشف. عامر خلیل. سابق صدر مدرسین اس کے بعد استاد ذیشان کالج کو بٹیک دیں. ان کے بعد عامر خلیل شیخ منتجب الدین صاحب پرنسپل سابق علمی ہائی اسکول اور جونیئر کالج کو، جو موجودہ ہیڈ ماسٹر علمی. گلگوشی کا یہ سلسلہ یہاں اختتام کو پہنچا. شیخ محمد اکبر صاحب سیکرٹری علمی ایجوکیشن سوسائٹی اجیر، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ڈاکٹر عیسیٰ خان صاحب اور دیگر ذمہ داران.
सदर सोसाइटी सेक्रेटरी और अलमिया एजुकेशन सोसाइटी और तमाम साबिक़ हुज़ूर की जानिब से आप तमाम का मैं इस्तक़बाल करता हूँ। मैं सबसे पहले एक बात आप लोगों की कह दूँ कि इस प्रोग्राम के रखने का मकसद क्या है। मकसद बड़ा वाज़ेह है, जो आपके इन्विटेशन कार्ड पर ही लिखा हुआ है। वो 3 लफ्ज़ हैं, वही मकसद है। वो 3 लफ्ज़ हैं रिकनेक्ट, रीयून और रीयूनाइट। बस इसकी थोड़ी सी वजाहत करूँ, और वो ये है रिकनेक्ट करना है आपको, टू गेट बैक इन टच। फिर सवाल पैदा होता है किसको किससे कनेक्ट करें, तो उसका जवाब ये है कि साबिक़ तलबा को इदारे से कनेक्ट करें। फिर उसके बाद आता है रीलीव। रीलीव के माने जिंदगी गुजारना, रीलीव दोबारा उस इदारे में आकर उस जिंदगी को महसूस करना जो आप तालिब इल्म के ज़माने में महसूस करें। ये हमारा मकसद है। स्टेपिंग बैक इनटू द मोमेंट, ब्रीथिंग इट अगेन, नॉट जस्ट रिमेंबरिंग बट फीलिंग द हीट ऑफ दोज डेज। ये हमारा मकसद। टू यूनाइट अगेन, रीयूनाइट, दोबारा मुत्तहिद करना। आपको ये तीनों लफ्ज हमारी लगते होंगे मगर है नहीं, लेकिन तीनों के मकासद अलग हैं, और इसको आप लोगों को रीयूनाइट करना, मुत्तहिद करना। अब एक लफ्ज के साथ एक लफ्ज और जोड़ देता हूं मैं इसको, रिकनेक्ट। रिकनेक्ट इसका मतलब होता है वी मैंड, हम अपनी आप की इस्लाह करते हैं। दूसरा लफ्ज है टू रिन्यू, हम अपने आप को रिवाइव करते हैं, जिंदा करते हैं, तजदीद करते हैं, आप अपने आप अंदर जान डालते हैं। और लास्ट में आता है रीयूनाइट, हम जो दोबारा मुत्तहिद होते हैं तो यकीनन हम इसको जश्न मनाते हैं। तो ये मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। उदगीर के अंदर तमाम उर्दू मदारिस जितनी भी हैं आज तक के, इस तरह का प्रोग्राम किसी ने किया नहीं है, हमने ये पहला कदम उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे तलबा, मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे हैं। मैं क्लास में आपका मौलिम हूँ और आप मेरे स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए, आप उन दिनों को याद कीजिएगा, मुझे याद आते हैं सब चीज़ें। तो वही चीज़ों को हम यूनाइट और रिव्यू और रिमाइंड करते हैं। ये ख्याल आया था, इस सवाल का जवाब इस तरह से है कि मुहतरम अकबर साहब की फिक्र का नतीजा है ये। काफ़ी सालों से वो इस फिक्र में थे कि अलमीन के अंदर से जो तलबा बाहर निकले हैं और समाज की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, क्यों ना उनको एक मरतबा मुत्तहिद किया जाए, उनको बुलाया जाए, उनको करीब से देखा जाए कि वो समाज के अंदर रोल करते क्या है। उसी का नतीजा था कि पिछले कई सालों से इस तरह का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता रहा। हाजी सैयद मूसा साहब के ज़माने में, उसके बाद उस्ताद सैयद सलीम साहब के ज़माने में, उसके बाद मुंतकिब साहब के ज़माने में और आज़मा बाजी साहिबा के ज़माने में भी ये काम होता रहा, रजिस्टर मेंटेन होते रहे। अकबर साहब की फिक्र को हमने उसको जिंदा रखा वहाँ, और वहाँ पर रजिस्टर आपके नाम उन रजिस्टरों में भी है। हमारे पास जितने भी ज़राए थे, हमने जितने भी ज़राए हमारे पास मैंने सकते उस ज़माने में, उतने ज़राए से हमने आपकी मालूमात को लिखा और तहरीर किया, रजिस्टर मेरे पास मौजूद है। लेकिन जब मेरे पास जिम्मेदारी आई तो उस वक्त फिर जो ये तकाज़ा सामने आया, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसका एक अलमनाई ये लफ्ज़ बड़ा अलमीन से ये टंग ट्विस्ट का काम कर रहा है, टंग ट्विस्ट का अलमनाई, क्यों ना जो है अलमनाई को एक जगह जमा किया जाए, क्यों ना डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और मैंने 21 जून 2025 को आपका ये अलमनाई ग्रुप बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने उस वक्त तकरीबन 382 बच्चे इसमें शामिल थे। और पिछले कई दिनों से मैं इस बात में मुस्तकिल कोशिश करता रहा, हमने पूरी पुरानी जो है तो आपके अटेंडेंस निकाली, आपके पूरे अटेंडेंस निकाले, आपके अंदर से नाम निकाले, आपके जो बच्चों के नंबर निकाले, हमने इस बात की कई मीटिंग्स की और उसके अंदर आप लोगों के नाम निकाले और आप सबको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की। आपको मैसेज दिया गया कि आप इस प्रोग्राम में शरीक रहें और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देखते हैं उसके बाद गूगल फॉर्म के जरिए से आपके डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की गई। इससे पहले भी गूगल फॉर्म दिया गया था, उसका डेटा हमारे पास मौजूद है। उसके बाद नया गूगल फॉर्म दिया गया और उसके अंदर तकरीबन 162 तलबा ने अपने रिकॉर्ड दर्ज कराए हैं। 162 कम है, 550 बच्चे तो इसके बाद
مجھے وہ پڑھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ ہم تو وہیں ٹیچر بن کر ہیں، لیکن ہمارے طلبا کتنے جو ہے حسین مقامات پر، کتنے جو ہے آسمان کے اندر بلندیوں کو چھو رہے ہیں. میرے سامنے یہاں بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ سرونٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کلاس 2 آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں. کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا. میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی سب کی جو ہے تو میرے ساتھ کروں، آپ سب کو جو ہے انعامات دوں، لیکن کسی ایک کو دوں، کس کو دوں، تو یہ سب میرے لیے ناممکن تھا. آپ لوگ آئے، یہ ہمارے لیے انعام کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 5600 طلبا ہمارے پاس پڑھ کر گئے ہیں. 1991-92 کی سب سے پہلی بیچ تھی. 5600 طلبا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے 50% اگر لڑکیاں ہیں تو آپ واقعہ 50% ہیں. اب تو یہ حال ہے کہ ہمارے اسکول کے اندر 63% لڑکیاں ہیں اور جو ہے 37% بوائز ہیں. اور پہلے لڑکی زیادہ ہوا کرتے تھے، لڑکیاں کم ہوا کرتی تھی، اور اب جو ہے تو لڑکیاں زیادہ ہیں اور لڑکے کم ہیں. تقریباً 2500 طلبا کو ہم نے ٹارگیٹ بنایا تھا المنائی کے زمرے میں آتے ہیں. پھر ہم نے یہ طے کیا کہ کن بچوں کو المنائی کے اندر شامل کریں. پھر اکبر صاحب سے اس مرتبہ میں اور گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کم از کم پیچھے 6 سال پیچھے جائیں اور ان بچوں کو بلایا جائے جو 2020 تک 1900 تک جو ہے تو شامل ہوتے ہیں. تو 1991 کی پوری حاضریاں نکال کر ہم نے کانٹیکٹ کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلسل ایک بارگننگ، ایک ہیمرنگ، مسلسل میرے طرف سے میسیجز آپ کو پہنچتے رہے اور آپ نے اس کو جو ہے تو ریسپانس کیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں. اب ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک یہ عربی آیا ہوا تھا کہ ہم جو ہے الامین ماجی ودیارتھی سنگھ بنائیں، ماجی ودیارتھی سنگھ. اور یہی بنیاد اس کی ہم جو ہے تو فارمر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہم بنانے والے ہیں، جس کا میں نے نام رکھا الامین فارمر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، جس کو ہم AFSO اس کا شارٹ فارم کے طور پر ہم بہت ہی جلد اس کے سلسلے میں جو ہے تو طلباء سے کانٹیکٹ کریں گے اور ہم یہ تنظیم بنائیں گے. اب تھوڑا سا میں ماضی کی طرف جاتا ہوں اور اسکول کا اسٹاف اب آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت تقریباً 26 لوگ الامین ہائی اسکول پر ہیں. پرائمری کا ڈاٹا میں تھوڑا یاد نہیں ہے، 24 ہے اور یہاں پر بھی کم از کم 8 لوگ یہاں پر بھی جو ہیں. اس طرح سے ہمارا ایک بڑا اسٹاف موجود ہے. پرانے ٹیچرز کے تھوڑے سے نام لے لیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کی یادیں تھوڑی سی تازہ ہو جائیں. موسیٰ ہاشمی صاحب ہے، استاد سید سلیم صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، منتجب سر بیٹھے ہوئے ہیں، اعظم واجی صاحبہ ہیں اور مرحوم بلخیس واجی. ان کے مغفرت کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی خبر کو نور سے منور فرمائے. یقیناً وہ خاتون تھی جس نے جو ہے تو آپ کے اندر سائنس کی جو ہے تو رجحان کو پیدا کیا. کیا آپ اس بات سے متفق نہیں ہے؟ یقیناً بہت محنتی اور بہت زیادہ جو ہے تو نیک خاتون، اور ریٹائر ہونے کے بعد زیادہ نہیں 2 سال زندہ رہی اور وہ 2 سال بھی قرآن کی خدمت کرتی رہی. اور مجھے ایسا لگتا تھا ٹیچنگ ہی ان کی زندگی تھی، جب ٹیچنگ ان سے ہٹی تو وہ بھی زندہ نہ رہی. ہم ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آتے ہیں سلیم برکوٹے سر جو آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور اکرام سر ہیں. پھر ہمارے آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری نانی ہوا کرتی تھی، نانی کی نقل بھی کیا کرتا تھا میں کلاس کے اندر. نانی ہوا کرتی تھی، جمیل بھائی ہمارے اور ہمارے شاہ محمد، یہ سب لوگ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. اس بیچ میں اکیلا باقی ہیں. ہمارے جونیئر لیکچرر جونیئر کالج کے اندر انور حسین صاحب ہیں، محی الدین سر ہیں، دائی اسرار سر ہیں، نسرین بیگم ہیں، ملکی غزالہ ہیں، قریشی شاہانہ ہیں، شیخ زہیب ہیں اور یہ تدریس کرتے ہیں علمی ہائی اسکول کے اوپر. ڈیوینیکر مجیب ہے، شاکر ہیں، غفور ہیں، عرفان ہیں، عثمہ، حسنہ، عتیق، زبیر اور گھر کا ترنم، بدری نعیم، شیخ غفار، اسما اور نیلوفر تدریس کا کام انجام دے رہی ہیں. ان تمام اسٹاف کے اندر 9 جو کام کر رہے ہیں وہ میرے شاگرد ہیں، وہ المنائی کے اندر موجود ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو تھوڑی سی یادیں تازہ کرتا ہوں کہ یہ تازہ یہی بات کہتے ہوئے کہ اس کے اندر 9 میرے شاگرد موجود ہیں. آج بھی مجھے وہ پرانے دن یاد آتے ہیں. اب وہ تدریس میں وہ مزہ نہیں جو آپ کو پڑھانے کو تھا. یہ میرا ایسا بہت سارے بچے مجھ سے سزا نہیں پائے ہیں، یاد آتا ہے شاید. اور میں نے اس بات کو محسوس کیا، جتنوں کو میں نے سزا دی ہے الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی ترقی کی.
और जिसको नहीं दी उन्होंने ज्यादा तरक्की की है। बस इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बस आप लोगों के साथ यादें ताज़ा करने की वक्त का हुआ चाहता है। थोड़े से प्रोग्राम के अंदर हमने आपकी नमाज का इंतजाम किया है। ये हमारा नमाज हाल है, वजू का इंतजाम है। अगर आपके पास असर का वजू है तो आप जो है तो नमाज के लिए वहाँ पहुँचेंगे, अजान भी होगी इंशाअल्लाह। और इसके बाद में अनवर सर की एक तकरीर है, उसके बाद जो है तो हम अजान देंगे, अजान के बाद जो है तो उसके बाद नमाज होगी, उसके बाद आप लोगों के ख्याल सुनने हैं। तैयार है ना आप लोग? हाँ। तो अब आपने वक्त निकाल कर आया है, जहाँ से जाना नहीं है, नमाज हमारे साथ अदा करनी है और उसके बाद जो है तो हम प्रोग्राम को जारी रखेंगे। मैं अनवर हुसैन साहब को अनवर हुसैन साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर सफ़र अलमीन का सफ़र ये पेश करें। चैलेंजेस और मुश्किलात जाहिर बात है किसी सफ़र के आगाज़ में बहुत ज़्यादा होती हैं। वो चैलेंजेस भी थे, वो मुश्किलात भी थे, लेकिन ये लोगों का अज़्म पुख्ता था और ये सफ़र आगे बढ़ता गया। 1981 में इसकी बुनियाद पड़ी और 1987 में हाई स्कूल की बुनियाद पड़ी। पहली मर्तबा बोर्ड के इम्तिहान में शरीक होने वाले 13-14 बच्चे, जो एक बहुत मुख्तसर सा एक सफ़र था, 90-91 की बैच, वहां से हिम्मत आई, सिलसिला आगे बढ़ता गया। फिर 1994 में इन्होंने फैसला किया कि जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स भी खोला जाए, वो भी उसका भी आगाज हुआ और ये सफर अभी जारी ही था कि ये लोगों ने सोचा कि साइंस का जूनियर कॉलेज भी यहां पे शुरू किया जाए, जो 2009 और 10 में शुरू किया गया। फिर हिम्मत बढ़ी तो देखा कि डीएड कॉलेज की जरूरत है हमारे पास, तो 2006 में डीएड कॉलेज का आगाज हुआ, जहां 10वीं जमात में सिर्फ 13-14 बच्चे इब्तिदाई जमातों में होते थे, आज औसतन 150 बच्चे 10वीं जमात में होते हैं। एक इब्तिदाई जब जूनियर कॉलेज खुला था तो मुश्किल से 50-60 बच्चे दाखिला लेते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 250 से ज्यादा बच्चे जूनियर कॉलेज में पढ़ते हैं। फिर हाई स्कूल की तादाद 551 है और अभी अगर हम देखें हाई स्कूल और प्राइमरी की तादाद, मौजूदा तादाद जो 2112 बच्चे इस इदारे के अंदर पढ़ते हैं। तो वो एक जो कोमल 1981 में अपना वजूद जाहिर की थी, आज एक शजरे सायादार के तौर पे आपके सामने नुमाया है। और हमें खुशी हो रही है कि उसी शजरे सायादार के एक मीठे और लजीज फल आज हमारी टोकरी में यहां बैठे हुए हैं। जैसे किसी बागबान को फसल आने पे खुशी होती है, वैसी खुशी आज हम महसूस कर रहे हैं कि एक कोंपल लगाई गई थी, वो एक शजरे सायादार और एक फलदार दरख्त बना और उस बागबा ने उससे एक चुन के चंद फल निकाले हैं, उसके सामने टोकरी है और वो उसकी कमाई है और ये उम्मीद कर रहा है कि इससे बहुत मुनाफा होगा। और वो मुनाफा उनका अपना जाती नहीं है, बल्कि मुनाफा उस कौम और मिल्लत का है जिसके लिए इदारा कायम किया गया। ये वो दरख्शां सितारे हैं जो अलग अलग मैदानों में अपनी कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं। यहां कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ इंजीनियर्स भी हैं, कुछ उकला हैं, कुछ तिजारत कर रहे हैं, कुछ छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है, क्या है कि हमने देखा कि जिस मकसद के लिए ये इदारा कायम किया गया था, उसका जो मगज था वो ये था कि तालीम के साथ साथ तरबियत से आरास्ता किया जाए। आप लोगों की इस मजलिस से, आप लोगों से मुलाकात करने के बाद, आप लोगों से मिलने के बाद, आप लोगों से बात करने के बाद ये यकीन आज हमारे अंदर पुख्ता हुआ है कि अलमीन से निकलने वाले बच्चे जिस दर्जे के तरबियत याफ्ता हैं उसमें हम खुशी है। कोई डॉक्टर बने या ना बने उसकी कोई अहमियत नहीं है हमारे नजदीक। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि अहमियत नहीं है, वो अपने मैदान में काम कर रहे हैं, लेकिन एक बेहतरीन इंसान बनाने में ये इदारा कामयाब हो गया, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है।
عزیز طلباء و طالبات، یہ سفر جب شروع ہوا تو ابتدا میں جناب سلیم استاد صاحب نے اس کمان کو سنبھالا. اس کے بعد موسیٰ ہاشمی جیسی باوقار شخصیت کے ہاتھوں میں ادارہ آیا. انہوں نے نہ صرف اساتذہ کی بلکہ طلباء کی تربیت کی اور ایک تربیت کا ماحول پیدا کیا. پھر اس کے بعد ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد سلیم استاد صاحب نے اس قافلے کو آگے لے کر چلے گئے. ایک طویل عرصہ انہوں نے اس ادارے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کیا اور وہاں سے ایک جوش اور ایک ولولے کے ساتھ یہ قافلہ آگے بڑھا. ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد جناب شیخ منتجب صاحب نے اس ادارے کو سنبھالا، اس کو کچھ نئے آیام دیے، کچھ نئے ڈائمینشنز انہوں نے اس کو دیے اور یہ سفر پھر اعظم آبادی کے ہاتھ میں آیا اور آج جو ہے پھر ایک پرجوش اور پر حوصلہ جناب غلام غوث خان صاحب کے ہاتھ میں یہ قافلہ چل رہا ہے اور یہ انشاءاللہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس کے بعد اس قافلے میں جو لوگوں نے خواب دیکھا تھا ان میں سے کچھ لوگ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. ہم ان کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ نئے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے اس قافلے کو جوائن کیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اس خوابوں کی امانت کو آگے لے کر چلیں گے، جن میں جناب ڈاکٹر عیسیٰ خان صاحب، جناب ہاشمی ارشد صاحب اور ہاشمی سلیم صاحب. اس کے علاوہ پرائمری اسکول جو اصل میں کسی بھی ادارے کی بنیاد ہوتا ہے، اس کی ایک طویل عرصے تک رہنمائی اور قیادت کی ذمہ داری جناب ہاشمی اسماعیل صاحب نے سنبھالی اور ایک چھوٹے سے ادارے کو تربیت اور تعلیم کے ذریعے آراستہ و پیراستہ کیا. تو عزیز طلباء و طالبات نہیں ہیں، سوری، وہ روز کی عادت ہوگی اس لیے. تو بہرحال یہ جو سفر ہے، یہ خوشی ہم کو آج اس قدر ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. میں نے ایک مثال مالی کی دی ہے کہ مالی جس طرح خوش ہے آج ہم اس طرح خوش ہیں. اسرار الحق مجاز نے علی گڑھ کے نظر جو ایک ترانہ لکھا تھا، اس ترانے میں انہوں نے ایک تصور دیا تھا کہ ایک ابر ہوگا جو نکلے گا علی گڑھ سے اور ساری دنیا پہ چھا جائے گا، ساری دنیا پہ چھا جائے گا اور اپنی صلاحیتوں اور اپنے کردار کے ذریعے پوری دنیا کو مسخر کر لے گا. تو یہ تاریخ کا یہ سفر بہت مختصر وقت ہے. ہماری ایسی خواہش ہے انشاءاللہ کسی موقع سے اس کو پورا کیا جائے گا کہ الامین کی اس پوری تاریخ کی ایک ڈاکومنٹری فلم بھی بنائیں گے ہم انشاءاللہ، تاکہ وہ چیزیں آج ڈیجیٹل دنیا ہے اس لیے اس کو محفوظ کر لیا جائے گا. اس وقت انشاءاللہ آپ کی یاد بھی آئے گی، آپ کی خدمات بھی ہم لیں گے. تو اسرار الحق مجاز نے علی گڑھ کے اس ترانے میں جو تصور دیا تھا کہ ایک ابر یہاں سے اٹھے گا اور سارے زمانے پہ چھا جائے گا، تو اس کے چند اشعار آ کر کے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں کہ اس گل کدے پارینہ میں پھر آگ بھڑکنے والی ہے، اس گل کدے پارینہ میں پھر آگ بھڑکنے والی ہے، پھر ابر گرجنے والے ہیں، پھر برق کڑکنے والی ہے. جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا، ہر جوئے رواں پر برسے گا، ہر کوہ گراں پر برسے گا، ہر سرو سمن پر برسے گا، ہر دشت و دمن پر برسے گا، خود اپنے چمن پر برسے گا، غیروں کے چمن پر برسے گا، ہر شہر طرف پر گرجے گا، ہر خسر طرف پر کڑکے گا. یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا، یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے، آپ قوم و ملت کی بے انتہا خدمت کریں اور الامین کی اس امانت کو اپنے سینوں میں لے کر پوری انسانیت پہ چھا جائیں. اللہ سے یہی دعا کے ساتھ میں اس سفر کا اختتام کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ سفر جاری و ساری رہے گا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یقیناً یہ سفر جاری و ساری رہے گا. اب ہم الامین المنائز میر کی اس پڑاؤ پر آتے ہیں جہاں ہمارے درخشندہ ستارے عزیز ترین طلبہ آپ اپنا اظہار خیال، اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے تصورات کو یہاں باری باری آ کر پیش کریں گے، جس میں میں
नाम लूंगा। सबसे पहले जरगर मुख्तदिर जो सिविल इंजीनियर है, मस्जिद नबवी मदीना शरीफ सऊदी अरेबिया से आप ताल्लुक रखते हैं, वहाँ ये सिविल इंजीनियर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। जरगर मुख्तदिर। मोजिस प्रिंसिपल जनाब ओसान सर, काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम, उस स्कूल इंतज़ामिया और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि हम ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी पीछे मुड़ कर देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही रास्ते हमें याद दिलाते हैं कि हमने सफ़र कहाँ से शुरू किया है। और आज की ये महफिल दर हकीकत इसी इसको खूबसूरत वापसी का नाम है। आप लोगों में से शायद अक्सर मुझे नहीं जानते हैं, मैं 2003 और 4 के एसएससी पास आउट स्टूडेंट हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मैंने निकमार हैदराबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मैंने डुअल चार्टरशिप की है यूके के प्रोफेशनल बॉडीज से। मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है और इस स्टेज पर तकरीबन 22 साल के बाद यहाँ पर कुछ कहने का मौका मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है। ऐसा लगता है कि जैसे वक्त ने खूबसूरत चक्कर मुकम्मल कर लिया हो और हम सब दोबारा उसी मकाम पर जमा हो गए जहाँ से हमारे ख्वाबों का सफ़र शुरू हुआ था। ज़िंदगी में इंसान बहुत सी मंजिलें तय करता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमारे दिल के करीब होती हैं, और ये इदारा भी इसी तरह हमारे दिल के करीब है। अलुमनाई मीट सिर्फ एक तकरीब नहीं होती, ये यादों, रिश्तों और मुश्तरका ख्वाबों की तजदीद का नाम है। ये वो लम्हा है जब हम अपने माजी की खूबसूरत यादों को एक आज कामयाबियों के साथ जोड़ते हैं। और अगर सच कहा जाए तो यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम फिर से वही तालिब इल्म बन गए हैं। फ़र्क शायद सिर्फ इतना है कि उस वक्त हम असातिज़ा के लेक्चर से भागते थे, लेकिन आज उन्हीं असातिज़ा की नसीहतों को याद करके ज़िंदगी के फैसले करते हैं। आज अगर हम अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इनकी बुनियाद इन क्लासरूम से ही है। यहाँ मौजूद असातिज़ा की मेहनत, इनकी रहनुमाई, इनकी दुआओं में हमें वो रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। पिछले सफ़र में मेरी मुलाकात जनाब शाकिर सर से हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 10वीं में मैंने एक ख़त लिखा था, वो ख़त सर के पास आज भी महफूज है। तो मुझे तो याद नहीं था, पर ये हमारे असातिज़ा के हमसे मोहब्बत का एक नमूना है। लेकिन ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि शायद हमारे माँ बाप के बाद हमारी तरक्की पर जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है, शायद ये असातिज़ा ही है। अनवर सर की बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ कि वो कह रहे थे कि माली हम हैं और ये फल हैं। मालियों ने अच्छा सींचा है, इसीलिए ये फल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। दोस्तों की रफ़ाक़त, असातिज़ा की रहनुमाई और वो यादगार लम्हात जो यहाँ हमने गुजारे हैं, यही वो सरमाया है। इसी मौके पर एक अजीम शेर याद आता है, खुद ही कुकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। दोस्तों, अलुमनाई मीट सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं होता, ये दरअसल एक ताकत होती है। अगर स्कूल के अलुमनाई मुत्तहिद हो जाएं तो वो सिर्फ कामयाब लोग नहीं रहते, वो माशरे की तकदीर बदलने वाली ताकत बन जाते हैं। आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, नए मौके पैदा हो रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि बाज़ औक़ात माशरे में नाइंसाफ़ी भी नज़र आती है, गलत फहमियाँ भी बढ़ती हैं, और कभी कुछ तबक़ात ख़ास तौर पर अक़लियतों को खुद तन्हा महसूस करती हैं। ऐसे वक्त में आज जैसे आप जैसे तालीम याफ्ता लोगों की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। और एक बात यहाँ पर अर्ज़ करता चलूँ कि हम बहुत सारा एक मिथ है कि हम कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती है। ये एक मिथ है और ये हमारी एक तसल्ली है। सही तो यह है कि हम ट्राई नहीं करते। मैंने 2010 में इंजीनियरिंग पास आउट किया। मेरे साथ के और मज़ाहिब के तकरीबन हाफ या मोर देन हाफ जैज गवर्नमेंट जॉब्स में, वो लोग एक ज़िद में है, एक जद्दोजहद में है, और हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर अक्सर तालीमी
तबके से भी लोग वाबस्ता हो गए हैं, अक्सर टीचर्स भी बन गए हैं। उर्दू मदारिस के खासकर मराठवाड़ा में इसकी कमी देखी गई कि उर्दू मदरसों से पढ़ने वाले मुस्लिम तलबा जब 10th स्टैंडर्ड से पास आउट होते हैं और जब 11th 12th में जाते हैं तो एक खला में रहते हैं वो लोग और मज़ाहिब के लोगों के और बच्चों के साथ जो कंपटीशन होता है उसमें नहीं होते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारा मदरसा और जो भी लोग टीचर्स हैं वो ये कोशिश करें कि इस गैप को उनके 10th तक रहते हुए इसको कम करें, उनके कंपटीशन इंटर स्कूल्स को पहुँचे। और ये मेरी गुजारिश है और इसका फोबिया कम हो जाए। और पिछले साल एक मेरे आईएएस से मुलाकात हुई थी, उनको पूछा मैं कि भाई हमारे बच्चे यूपीएससी में क्वालिफाई नहीं होते तो क्या वजह है और क्या कमी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे बच्चे जो मराठी और इंग्लिश मीडियम के तलबा से सही आसानी से उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, हमारे नॉर्मल एमपीएससी को भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो यूपीएससी दूर की बात है। तो ये चीज़ों पे भी हमें ज़रूर ख्याल करना चाहिए। और दूसरी एक मेरी गुजारिश है स्कूल लिहाजा की इंतज़ामिया से कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए एक प्ले ग्राउंड का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि ये कमी हमें महसूस होती है कि हमारे बच्चे स्कूल में हैं, वहाँ ग्राउंड नहीं है। कम से कम यहाँ एक ग्राउंड बनाया जाए, हफ्ते में एक आध बार उनको एक फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए। बस हमें नफ़रतें नहीं बढ़ाना है, हमें उम्मीद को बढ़ाना है, हमें तकसीम को नहीं बढ़ाना है, हमें इत्तेहाद को मजबूत करना है। और हसद वो अंधेरा है जो रोशनी देख कर भी जलने लगता है। आज इस हाल में बैठे हुए लोग शायद मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ पेशों से आए हैं, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ। मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, उसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मा व मकान और भी हैं। आज कई साथी हमारे जो आए हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमारी इंतज़ामिया का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हमें रिकनेक्ट किया, हमें एक चांस दिया कि वी रियली एंड वी आर रीयूनाइटेड। और एक शेर कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि हम सबको यहाँ से एक शुरुआत है। ये अलुमनाई मीट सिर्फ माजी को याद करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ मुस्तकबिल बनाने के लिए आए हैं। हम यहाँ सिर्फ एक मुलाकात के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ एक मिशन शुरू करने के लिए आए हैं। हम यहाँ सिर्फ एक प्रोग्राम में नहीं आए हैं, हम यहाँ एक तहरीक बनाने के लिए आए हैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इस इदारे को हर तरह की तरक्कियों से नवाजे, असातिज़ा इकराम की मेहनतों को कबूल फरमाए और हम सब को अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने कौम और मिल्लत के लिए कुछ करने की क़ुव्वत अता फरमाए। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थे ज़रगर मुख्तदिर जो अपने एहसासात को बयान कर रहे थे। इनके बाद डॉक्टर हाशमी सैयद इरफान शिफा क्लिनिक और मौजूदा वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर सैयद यूनुस है और उर्फियत इरफान है और मैं आज इस स्टेज पर बतौर एक साबिक तालिब इल्म के यहाँ पर खड़ा हूँ और साथ में मैं एक डॉक्टर भी हूँ और जमात सब अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में वापस लौट आए हैं। क्यों तो बचपन का वो दौर जो होता है जहाँ पर ना हमें पैसे की ज़रूरत होती है और ना ही हमारे पास कुछ वक्त गुजारने के लिए दूसरी जगह होती है, बल्कि स्कूल ही वो मुकाम होता है जहाँ पर हम अपने एक गोल्डन पीरियड हमारा जो है वहाँ पर गुजरता है। आज का दिन ये वो दिन है जब हम जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में वापस आ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी बैच के तकरीबन नौजवान साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं लेकिन दिल कहीं और है, क्लासरूम्स में, स्कूल्स के ग्राउंड में। और आज की जो या रब दिल मुस्लिम की जो दुआ हम सब ने पढ़ी तो एक जज्बाती लम्हा यानी रोंगटे खड़े होने वाला लम्हा मैंने महसूस किया। इन लम्हों में जहाँ पर हम हंसते भी थे, शरारत भी करते थे और डांट भी हमको पड़ती थी और सबके साथ रहते भी थे। सिर्फ दोस्तों
صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمین اسکول ہمارے لیے دوسرا گھر تھا. آپ اس بات سے سہمت ہیں کہ ہمارا عالمین اسکول جو ہے ایک دوسرا گھر تھا, کیوں تو جہاں پر صرف تعلیم ہی ملتی ہے وہ ایک اسکول ہوتا ہے, لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق جو ہم کو دیے گئے وہ جو ہے آج ہمارے اندر, ہم کو دیکھ کر کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا ایجوکیشن کہاں سے ہوا. عزیز ساتھیوں, میں کسی ٹیچر کا نام نہیں لوں گا, لیکن تمام اساتذہ نے جو کڑی محنت سے جو ہم کو سینچا ہے وہ آج آپ اس کا بغور مطالعہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف کتابوں کا علم نہیں ملا بلکہ زندگی جینے کا ہنر ملا. مجھے آج بھی یاد ہے وہ صبح کی اسمبلی, اساتذہ کی نصیحتیں, اقوال زرین, اور کبھی ٹیچروں کی ڈانٹ ڈپٹ مار, اور جو ہے کبھی ٹیچروں کی تعریف, ایک حوصلہ افزائی جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. اور دوستوں کے ساتھ جو بے فکری تھی ہماری وہ آج کبھی محسوس ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آج ہم سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی سرکاری ملازم ہے, کوئی استاد ہے, کوئی جو ہے آئی ٹی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے. لیکن ایک چیز جو ہم سب کو مشترک کرتی ہے وہ ہمارا رشتہ ہے. ہمارا رشتہ ہے اور وہ ہے عالمی. صرف عالمی نہیں وہ رشتہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں. تیرا میرا رشتہ کیا عالمی. آپ نے ہمیں صرف پڑھایا نہیں بلکہ ہمیں سنوارا ہے, ہمیں انسان بنایا ہے, ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے. اگر آج ہم کسی مقام پر ہیں تو اس میں آپ کی محنت اور دعائیں اور محبت شامل ہے. دوستو, زندگی بہت تیزی سے گزرتی ہے. آج ہم یہاں ہیں, کل نہ جانے کہاں ہوں گے, لیکن یہ یادیں, یہ رشتہ, یہ محبت ہمیشہ ہمارے ساتھ باقی رہے گی. تذکیر قرآن میں جو سورہ عصر پڑھی گئی اس سے بھی یہ چیز ہمارے سامنے نمایاں ہو چکی ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے, اچھا ہوا راہ میں ٹھوکر مجھے لگی, میں گر گیا تو کیا ہوا, زمانہ سنبھل گیا. عزیز ساتھیوں, آج ہم کو ٹھوکر لگ چکی ہے. ہم نے زندگی کے 35 سال, 36 سال, 40 سال, کوئی جو ہے 45 سال جو ہے گزار چکے ہیں, لیکن ایک تجربہ وہ ساتھ میں لیے ہوئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آئیے آج کا دن صرف ایک تقریب نہ بنائیں بلکہ اسے ایک نئی شروعات بنائیں, ایک ایسا آغاز جہاں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے ادارے کے ساتھ جڑے ہوں. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ طے کریں کہ جہاں پر بھی ہم کو زندگی میں ٹھوکر لگی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل اور ان کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں. آخر میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں پرنسپل صاحب کا, تمام اساتذہ کا, سوسائٹی کے ذمہ داران کا اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اس سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج سے 45 سال پہلے جو سوسائٹی نے خواب دیکھا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں ہی اس خواب کی تعبیر بتا دیا اور اس کا اجر بھی بتا دیا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. آمین. وآخر والحمدللہ رب العالمین. یہ تھے ڈاکٹر ہاشمی عرفان. ان کے بعد پٹھان عمران, ویتن ادھیشک, پے یونٹ, کلاس 2 آفیسر, عثمان آباد, اپنے خیالات کو پیش کریں گے. پٹھان عمران. عالمین ایجوکیشن سوسائٹی ادگیر کے اسٹیج پر موجود تمام عہدیداران, تمام ماضی ہیڈ ماسٹرز, موجودہ تمام اساتذہ اکرام اور اس تعلیمی ادارے کے ماضی تمام طلباء, السلام علیکم. آج یہاں اس مقام پر کھڑے رہ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس پروگرام کا منعقد ہمارے استاد محترم جناب غوث خان صاحب نے بہت اچھے سے کیا ہے. اور ایون آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, پرٹیکولرلی ہر ایک کینڈیڈیٹ کو انہوں نے فون کر کے بتایا ہے کہ آپ کی موجودگی یہاں پر ضروری ہے. تو آج ہم جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف جناب غوث خان سر کی وجہ سے ہم سب ایک جگہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. تو اس لیے میں تہ دل سے غوث خان سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی عزت دے کر ہم لوگوں کو یہاں پر بلایا. اور آج بھی میں اساتذہ اکرام کے بارے میں بتانا چاہوں تو اس تعلیمی ادارے کے اساتذہ اکرام
इतने बेहतरीन हैं कि आप लोग देखो दूसरे असातिज़ा किराम से कंपेयर करो कि कोई होटल्स में है तो किसी दारू खाने में कोई है, तो किसी के मुंह में पूड़ी है, तो किसी का कुछ है, लेकिन इस तालीमी इदारे का एक भी तुम्हारे को उस्ताद ऐसा नहीं मिलता कि जो ऐसे किसी होटल में बैठा हुआ है या फिर कुछ कर रहा है या कुछ ऐसे गलत काम वगैरह ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो इसलिए बहुत खुशी होती है। और एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि आज हम लोग यहाँ पर जो तरक्की के मुकाम पर खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे असातिज़ा इकराम की वजह से खड़े हैं। पर्टिकुलरली मैं आप लोगों को मेरा एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि 10वीं तक वगैरह मैं उतना कुछ टैलेंट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन इस इदारे में दोस्तों मेरा बेसिक स्ट्रांग किया हुआ था। यानी कि जिस किसी का अगर बेसिक स्ट्रांग होता है तो वो आगे जाकर भी तरक्की कर सकता है। इस बात के एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताता हूं कि जिस किसी का अगर बेसिक स्ट्रांग है, और दूसरे के एग्जांपल मैं लोगों को आप लोगों को बताऊं कि जहां जाके वहीं सवेरा। अगर समझो माजी में हमसे कुछ छूट गया, कुछ कामयाबी नहीं मिली, कुछ तरक्की नहीं मिली, तो उस पर हमें नाराज नहीं होना चाहिए और जिंदगी में कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। नाउम्मीद जो इंसान होता है उसको हारना ही हारना है उसको। और जहां पर तुमको कामयाबी नहीं मिली तो सुन लो कि उससे बेहतर मेरे और किस्मत अच्छे होंगे, इसलिए मुझे अल्लाह ताला ने वहां पर नाकामयाबी दिया। उसकी लाइव एग्जांपल मैं मेरी लेकर दिखाता हूं कि 10वीं में मैं एकदम वीक स्टूडेंट था। मेरा ओनली 44% है मेरा 10th क्लास में, सिर्फ 10वीं में 44%। और रोशन सर शुरू में बताया कि बहुत सारे तालिब इल्म यहाँ पर जो है सो मेरी सजा पाए हैं, तो उसमें का एक एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ जो सर मुझे बहुत मारा करते थे हमेशा। और जिस वक्त मैं 7वीं क्लास से पास आउट होकर 8th क्लास में जब मैं हाई स्कूल में मैं आया तो हमारे बड़े भाई साहब हैं पठान फिरोज खान साहब, तो सर मेरे को भी उनकी तरह समझा करते थे कि ये भी जो है होशियार होगा। तो यूनिट टेस्ट हुआ तो यूनिट टेस्ट में कितने 4-5 मार्क मिले, हो सकता है बच्चे को कुछ मसला होगा इसलिए नाकामी मिलेंगी। दूसरे यूनिट टेस्ट में फेल, चश्मा एग्जाम में फेल, तो सर ने ऐसा मार मारा मुझे, तेरे को समझा मैं तेरे भाई के जैसा और तू इतना नाकारा है मुझे पता ही नहीं था मुझे। तो सर जो है वहां पर मुझे बहुत सख्ती के साथ पेश आया। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जहां पर जागो वहीं सवेरा होता है। मैंने डीएड किया, उसके बाद सीडी एग्जाम दिया, मेरे को नाकामयाबी मिली। बीएड दिया, फिर उसके बाद भी सीटी एग्जाम दिया, मुझे नाकामयाबी मिली। फिर उसके बाद मैंने जो है सो एक एग्जाम दिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें भी मुझे नाकामी मिली। फिर उसके बाद मैं इस इदारे में इंटरव्यू दिया कि जो है मैं एक टीचर्स के लिए अप्लाई किया, यहां पर भी मुझे नाकामयाबी मिली। लेकिन उसके बाद जो है सो 2012 में मैं एक एग्जामिनेशन दिया, तो उस एग्जामिनेशन में मुझे बेहतरीन कामयाबी मिली। यानी कि इससे पहले मैं जितने जो एग्जामिनेशन क्रॉस किया, जितने इंटरव्यू दिया, उसमें सब में मुझे नाकामयाबी मिली। यानी कि वहां पर अगर मुझे कामयाबी मिली होती तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी टीचर रहा होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर जो खड़ा हूँ, तो जितने भी हाई स्कूल टीचर्स हैं, जितने भी लेक्चरर्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, सबके पेमेंट ये मेरे हाथ पर होते हैं, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो दुआ करता हूँ कि आप लोग दुआ करिए तो लातूर जिले की खिदमत करने का मुझे मौका मिले कि लातूर जिले में जब मैं आऊँगा तो इंशाअल्लाह ताला तमाम असातिज़ा इकराम के हर मसाइल को हल करूँगा। अभी वहां पर भी जो सर मैं आप लोगों को लिटरली बताता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स आते हैं। एक थोड़ा सा बुरा लगने मतलब आप लोग सोसाइटी के तरीके मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे पास जो क्रिएट मसले जो आए उन मसलों को लेकर मैं बता रहा हूँ कि किसी भी किस्म का मनफी असर उस्ताद के जहन पर नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म का। क्यों कि उसके असरात डायरेक्टली स्टूडेंट्स के ऊपर होते हैं, डायरेक्टली। और अगर टीचर एक समझो जहनी तौर पर अगर मुंतशिर है तो अच्छे तरीके से तालिब इल्म को तदरीस नहीं कर पाएगा। अगर टीचर फ्री फ्रैंक है, टीचर जो मुतमईन है, तो अच्छे से तरबियत तालिब इल्मों को तदरीस देगा और उसके नताइज जो हमें अच्छे से मिलेंगे। तो टीचरों को जो है ज़हनी तौर पर मुंतशिर नहीं होने देना चाहिए, ये सबसे बेस्ट। क्योंकि मेरे पास एग्जाम्पल्स आते हैं सर बहुत सारे, वहां पर टीचर्स जो है एब्सेंट आने नहीं देते स्कूल में, टीचर्स को स्कूल में आने नहीं देते कई सारी जगह पर। यानी कि जो है कुछ बिहेवियर की वजह से टीचर्स के इंक्रीमेंट रोक देते हैं, टीचर्स को 12 साल का जो है बेनिफिट नहीं देते वहां पर। ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को बताता हूँ वो कई सारे पूरे मसाइल में वहां पर 90% हल कर चुका हूँ, सिर्फ 5 महीने में मुझे ज्वाइन हुआ। 5 महीने पूरे मसाइल को मैं हल करने की वहां पर कोशिश करता हूँ। तो अभी वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने अल्फाज यहाँ पर थोड़ा सा रोकता हूँ। अभी इंशाल्लाह समझो तालीमी इदारे में अपने मैनेजमेंट में वगैरह कभी मुझे बुलाए तो जो भी टेक्निकल जो इश्यूज आते हैं तो मैं उस ताल्लुक से जो है आप लोगों को तमाम बातें यहाँ पर बताऊँ। कभी मुझे बुलाइए आप लोग
मैं हाँ जो भी इसमें बातें हैं मैं आप लोगों को इसमें क्लियर करूंगा। बस अपनी बात मैं यहाँ पर एक शेर के जरिए से खत्म करना चाहता हूँ कि ये लम्हे फिर ना लौटेंगे, ये साथ फिर ना आएगी। ये लम्हे फिर ना लौटेंगे, ये साथ फिर ना आएगी। उजाले अपनी यादों के हमेशा साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो। न जाने जिंदगी किस गली में शाम आएगी। ये थे पठान इमरान। इसके बाद डॉक्टर उबैद MBBS, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, यूनिक चिल्ड्रन हॉस्पिटल उदगीर, आपसे मुखातिब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है खुदा, मैं तो गूंगा था अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। आज के इस अलमनाई मीट में मैं आलमीन स्कूल के स्टाफ और प्रिंसिपल और साथ ही आलमीन स्कूल के सारी कमेटी को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मौके पर हमको यहाँ पे इनवाइट किया और आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। मेरा इब्तदाई तालीम इसी इदारे से हुआ है। मैं 2002 में 10th का एग्ज़ाम यहाँ पे नुमाया कामयाबी से पास कर शिवाजी कॉलेज में एडमिशन लिया था और 2004 में मैंने मेरे 12वीं का एग्ज़ाम पास किया और उसी साल मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में MBBS के लिए दाखिला लिया। उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कूपर मेडिकल कॉलेज मुंबई में मैंने एज ए पेडियाट्रिशियन और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुकम्मल किया और आज मैं यूनिक चिल्ड्रन हॉस्पिटल NIC और ICU सेंटर में तकरीबन 8 साल से अपने खिदमात को अंजाम दे रहा हूँ। इस सारे सफ़र में इस इदारे का और यहाँ के असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल है जो उन्होंने मेरा बेसिक और फाउंडेशन यहाँ से बनाया। मैं आपके सामने एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। हम बोलते हैं तालीम ज़रूरी है, लेकिन तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में तरबियत क्या है ये हमको समझना चाहिए। तरबियत जो है तालीम की एक अमली शक्ल है। इट इज़ द प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन। मिसाल के तौर पर झूठ बोलना गुनाह है, ये हमें मालूम है, ये हमारा इल्म है, लेकिन इस पर अमल करना और अमल करवाना ये तरबियत है। अगर से हम इस पर तरबियत करेंगे तो इल्म का तालीम का सही फायदा है। बिना तरबियत के तालीम की कोई शक्ल नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसी के साथ मैं आपको असातिज़ा और टीचर्स का क्या रोल है अपनी ज़िंदगी में और क्या इम्पोर्टेंस है वो भी आपको बयान करना चाहूँगा। अब्बास सल्तनत के मशहूर खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपने शहजादे को इल्म और अदब सिखाने के लिए इमाम अस्माई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजा। कुछ दिनों के बाद उन्होंने जाकर वहां पर देखा कि क्या प्रोग्रेस है। तो उन्होंने देखा कि इमाम इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह वजू कर रहे हैं और शहजादा जो है उनके हाथों से पैरों पे पानी डाल रहा है। ये देखकर हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह काफी नाराज हुए। बखूबी है आप लोग भी नाराज हो जाएंगे कि मैंने मेरे बच्चे को इल्म और अदब सिखाने के लिए भेजा है, लेकिन यहाँ पे क्या माजरा हो रहा है। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अस्माई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि ये क्या हो रहा है। सही तो ये होना चाहिए कि शहजादा एक हाथ से आपके पैरों पे पानी डालना चाहिए और दूसरे हाथ से आपका पैर धोना चाहिए। तो लेकिन आजकल का हम देख रहे हैं माहौल, स्टूडेंट्स को अगर से कोई टीचर अगर से कोई डांट देता है तो हम सब पेरेंट्स थोड़े हाइपर हो जाते हैं और बोलते। तो ये टीचर्स का अदब एहतराम बहुत ज़रूरी है। तालीम, तरबियत और टीचर का एहतराम, ये तीनों अगर से हमारे स्टूडेंट्स और हमारे कौम के बच्चों में आ जाएगा तो हम अपने मुल्क को और अपने कौम को इतना आगे लेके जाएंगे, इतना आगे ले जाएंगे कि सारी दुनिया हमारे पीछे रहेगी। और इसी के साथ मैं एक शेर कहकर अपना मुख्तसर स्पीच ख़त्म करता हूँ। ये शेर असरुल हक मिजाज ने कहा है, बहुत ज़बरदस्त बात उन्होंने कही है। जलाले आतिश बरखे सहाब पैदा कर,
अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। शुक्रिया। जो हो सके तो भी इनकलाब पैदा कर। ये थे डॉक्टर उबैद। इनके बाद सैयद वजाहतुल्लाह जो पेशे वकालत से वाबस्ता है। सैयद वजाहतुल्लाह हैदराबाद तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं। फिलहाल आप अपने एहसासात और ख्यालात अलमीन अलमनाई मीर से मुतालिक पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जलसे गाँव में तमाम जो मौज़िज़ीन मौजूद हैं और तालीमी इदारे अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के ज़िम्मेदारान, असातिज़ा इकराम और तमाम हाज़रान तलबा, मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तमाम लोग यहाँ आए और मुझे भी यहाँ बात करने का मौका मिला। हालांकि मेरी जमात से डॉक्टर यूनुस ऑलरेडी बात कर चुके थे, बावजूद उसके मुझे मौका मिला, मैं इसके लिए ज़िम्मेदारान का शुक्रगुज़ार हूँ। दरअसल मैं बिल्कुल 1 मिनट के अंदर ही जो है 1-1.5 मिनट में अपने इज़हार ख्याल मुकम्मल कर दूंगा। इदारे का किरदार इंसान की नशोनुमा में, वो मैंने आलमीन में महसूस किया अपने ऊपर। मेरे बच्चे ज़हीराबाद में दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं तो मुझे ज़मीन व आसमान का फ़र्क नज़र आया। बसारत इंसान में नशोनुमा के साथ होती है, देखने की बीनाई, बसीरत इस इदारे ने दी। बसारत फितरी अमल है, यानी ये दीवार है, इस दीवार के सामने जो चीज़ें मौजूद हैं मुझे नज़र आ रही है, लेकिन इसके पीछे क्या होगा, एक अमल के बाद उसके पीछे वाला अमल क्या होगा, वो जो होती बसीरत जो होती है, वो बसीरत इस इदारे ने दी। आज जो दुनिया की दीन की समझ हुई, उस समझ में मुकम्मल किरदार इस इदारे का है। क्योंकि वो जो उम्र थी 9-10 साल की उम्र से लेकर 14-15 साल की उम्र तक, जहां इंसान के अपने ख्यालात और उसके एहसासात, अपना समाज, मुझे मेरा दीन का पता इदारे की तरफ से चला। बहिसियत मुसलमान पैदा होना अलग शक्ल है, लेकिन तसव्वुर दीन क्या है, तसव्वुर दुनिया क्या है, और दुनिया के अंदर जितने शोबे हयात हैं, उन तमाम शोबे हयात में इंसान अपनी क्या नुक्ते नजर रखेगा, क्या उसका नुक्ता रखेगा, उस नुक्ते का वजूद इस इदारे में हुआ। तो अलगर्ज मुकम्मल इंसान की जो बुनियाद है, इंसान की एक शख्सियत बनने की बुनियाद है। इंसान तो हर एक है, लेकिन उसका वजूद जब ऐसा शख्सियत जब होगा, उस शख्सियत का वजूद उसका बुनियादी तालीमी इदारा तय करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुकम्मल इत्मीनान है कि मैं जिस तालीमी इदारे में मैंने तालीम पाई है, और मेरे जो ज़ातिया इकराम हैं और ज़िम्मेदारान मदरसा हैं, जनाब अकबर साहब बिलखुसूस हैं, उस वक्त तो दूसरे लोग हमारे मौजूद जो हैं स्टेज पे, वो ज़्यादा हमारी उनसे गुफ्तगू वगैरह नहीं होती थी। बिलखुसूस सलीम उस्ताद सर हैं, मुंतजिब सर हैं, गौस खान सर हैं, इनकी शफकत और रहनुमाई ने दिमाग के, जहन के दरीचे खोले, जिसकी बुनियाद पर आज हमको दुनिया शनासाई सीखने में मिली। दुनिया शनासाई एक बहुत बड़ा फन है। दुनिया शनासाई इतनी आसान बात नहीं है। हम लोग प्राइमरी स्कूल अलमीन में पढ़े, हाई स्कूल की तालीम भी अलमीन में ही हुई। उसके बाद में मेरा उदगीर से ताल्लुक ख़त्म हो गया। मेरे वालिद जो है ज़हीराबाद में जूनियर लेक्चरर थे, तो वहाँ मुंतकिल हो गए। मेरे वालिद वहीं रहते थे, मैं यहाँ ननियाल में था। उसके बाद में मैं लॉ किया, सिविल सर्विसेज लिखा, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस नहीं हुआ, इंटरव्यू नहीं आया एक दफ़ा। तो खैर अलगर्ज बहुत उतार चढ़ाव के बाद में ज़िंदगी एक मुकाम पे आ गई है। अब सियासत और वकालत 2 पेशे हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हूँ, तो अगर उसको समअप करें तो गोश्त के लोथड़े की शक्ल में माँ बाप ने जो है अलमीन में दाखिला दिया था। उसको एक मुकम्मल इंसान की शक्ल, उस पर नखूश, उस पर किरदार, उसको तमाम शख्सियत साजी असातिज़ा इकराम ने की है। तो इनका मरोन मिन्नत हूँ, जहाँ भी हूँ इस इदारे से ताल्लुक़ है, और इदारे के लिए बेहतरी के लिए हमेशा दुआगो हूँ। और आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, आप लोग भी अपने ख्यालात और अपने एहसासात अपने असातिज़ा इकराम से पेश करते हुए इदारे की बेहतरी और इदारे को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई मंसूबा या मंसूबा साजी की जाती है तो उसमें अपना किरदार अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे सैयद वजाहतुल्लाह। इनके बाद हाशमी सैयद सुहेल MIT कॉलेज के लेक्चरर हैं। आप औरंगाबाद में कॉलेज है, वो अपने एहसासात अलमीन अलमनाई मीट्स में रखेंगे।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौका देने के लिए शुक्रिया। जनाब जनाब शेख अकबर साहब, सेक्रेटरी अलमीन स्कूल, और तमाम सोसाइटी के मेम्बरान और असातिज़ा इकराम एंड द सेलिब्रिटीज़ ऑफ टुडेज इवेंट, सारे एलुमिनाइज, बहुत खुशी हो रही है। एक बार आई थिंक हम लोग सन 2000 के बैच से हूँ मैं, तब से लेके अब तक तकरीबन 26 साल हो चुके हैं। उसके बाद ये पहला मौका है जो हम एक जगह पे अंडर वन रूफ हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। एहसास बहुत ज़्यादा हैं, जज्बात बहुत ज़्यादा हैं। लफ्ज़ों के अंदर कोरोना मुझे नहीं आता, फिर भी कुछ लफ्ज़, कुछ बातें जो इस मौके पर मेरे जहन में आ रही है वो पेश करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इनिशिएटिव जिसने भी लिया है, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि कोई भी, जैसे मैं जिस इदारे में काम कर रहा हूँ, मैंने IIT बॉम्बे से PhD करने के बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया है एज ए फैकल्टी मेंबर। तो हमने देखा वहाँ पे कि एक रेगुलर ट्रेडिशन है एलुमनाई को मिलने का। क्योंकि कोई भी सोसाइटी के अंदर में एजुकेशन सोसाइटी होती है, उसके 4 पिलर होते हैं। एक मैनेजमेंट होता है, दूसरा असातिज़ा होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं और पेरेंट्स होते हैं। जब तक ये चारों एक जगह पे आकर बार बार मुलाकातें नहीं करते हैं, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट उतनी ऊपर नहीं जा सकता जितना वो जा सकता है। वैसे माशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह हमारे दोस्तों ने कह दी है, सीनियर्स ने, जूनियर्स से बहुत खुशी हुई कि कौन कहाँ पे पहुँचा है और इस इदारे ने जो ख्वाब देखे थे वो ख्वाब कितना ज़्यादा उसके ताक़ीर अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर में हम सबको दिखा रहा है। यहाँ पे 3 लफ्ज़ लिखे हैं, रिकनेक्ट, रिलीव एंड रीयूनाइट। गौसखान सर, माजरत के साथ एक और मैं इसके अंदर में लफ्ज़ शामिल करना चाहता हूँ, रिपीट, सो दैट ये जो हमारा जो रीयूनियन है वो बार बार हमारा हो उसके अंदर में। तो अगर वो भी अगर इसमें आ जाए तो इंशाल्लाह हमारे अंदर में भी एक मकसद रहेगा कि हमको यहाँ पे आकर बार बार मिलना है। यहाँ पे आने के बाद में स्कूल का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ देखने के बाद ऐसा लगा कि हमारे जिस वक्त में हम लोग स्कूल के अंदर में जब पढ़ते थे तो वो लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन टीचर्स जो हमारे पर मेहनत करते थे और जितनी खिदमत उस वक्त में हमारे लिए और जितनी फिक्रें हमारे लिए करते थे वो माशाल्लाह काबिल सताइश है। यहाँ पे आज हमारे उस्ताद मोहतरम अली जनाब हाशमी मूसा सर ने, उनकी कमी महसूस हो रही है, मेरे ख्याल से सारे लोगों को अंदर की कमी महसूस हो रही होगी। तो उनके अंदर, क्योंकि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ये सिर्फ एक तालीम का मरकज नहीं होता, एक शख्सियत साजी का मरकज होता है। इसके अंदर में सिर्फ बच्चों को कोई अच्छी डिग्री देना और अच्छी तालीम देने के साथ साथ एक शख्सियत और एक जहन साजी करना इसका मकसद होता है, जो हमारे असातिज़ा इकराम ने बहुत अच्छे से हमारे अंदर में की है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे असातिज़ा का, सोसाइटी का और सारे मेम्बरान जिन्होंने ये और जिन लोगों ने ये इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके अंदर में सपोर्ट लिया है, उन सबका शुक्रगुजार हूँ। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि सिर्फ तालीम के साथ, जैसे एडवोकेट वजाद ने भी बोला कि दीनदारी भी हमारे अंदर में ज़रूरी है। तो अकबर इलाहाबादी साहब का शेर है, शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में झूलो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चर्ख को छू लो, एक बात मगर बंदा अकबर की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। ये थे हाशमी सुहेल। अब इनके बाद उस्ताद सैयद ज़ीशान, मैकेनिकल इंजीनियर पूना, अपने ख्यालात व एहसासात को रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जलसा, मेहमान खुसूसी और मेरे तमाम हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ याद आया? अजीज दोस्तों, ये वो सुनहरे अल्फाज हैं जिन्हें अदा करते वक्त पेशानी पर पसीने के फव्वारों और जनरेटर की मानिंद दिल की धड़कनों के साथ जान निकली जाती थी। लेकिन जैसे ही तकरीर के ये इब्तिदाई जुमले अदा हो जाते हैं, तकरीर के बाकी जुमले भी गोया खुद ब खुद रवानी से अदा होने लगते और हम अपनी बात तकमील तक पहुंचा देते। दोस्तों, मेरा नाम सैयद ज़ीशान उस्ताद है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और 2006-07 की बैच से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं पुणे में एक मलेशियन कंपनी में
बिजनेस एनालिस्ट हूँ और साथ ही सॉफ्टवेयर क्वालिटी एनालिस्ट हूँ। मुझे मौका दिया गया है, मैं इसका बहुत मशकूर हूँ। जज्बात और एहसासात अल्फाज की तरतीब में हायल ना हो, इसलिए मेरी निगाहें अपने फोन की स्क्रीन पर मैग्नेटेड रहेंगी। अपने ख्यालात को मैंने कलमबंद जो किया हुआ है कि सकीना चाहिए बहरे बेकरार के लिए, और अब बनों के कलम से बनों की जबान पे ले आ रहा हूँ। अब जबकि स्कूल के डाइस पे मैं खड़ा हूँ, मुझे स्कूल का अपना वो पुराना दौर याद आ रहा है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि स्कूल के दिनों में मेरी बड़ी बहनें मुसाबकती तकारीर की तैयारी में मेरी भरपूर मदद किया करती थी और रिहर्सल के दौरान बार बार ये समझाती कि सामाइन को पत्थर समझो तो दिल नहीं घबराएगा और आसानी से आप तकरीर कह डालेंगे। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद कुछ दोस्त, जिनमें मैं तस्करा करना चाहूंगा साकिबुल इस्लाम, आमिर हाशमी, फजलुर रहमान और थानेदार दैया और साथ ही हाशमी साकिब, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता करे साकिब को, ऐसे थे जो खुद को हमारी नजर में पत्थर बनने नहीं देते थे। दौरान तकरीर वो ऐसी शरारतें और इशारे करते कि हम अपनी ही बात भूल जाएं। फिर किसी तरह अल्लाह अल्लाह करके तकरीर मुकम्मल होती और हैरत की बात यह कि हम इनाम के मुस्तहिक भी खराब पाते। लेकिन यकीन जानिए, आज यही नजरें आप तमाम को पत्थर बनना या पत्थर समझना बिल्कुल भी गवारा नहीं करती। मैं चाहता हूं कि मैं सबके चेहरों को देखूं, आपकी मुस्कुराहटों को देखूं, आप तमाम की आंखों और पेशानियों से झलकते जज्बात को महसूस करूं और साथ ही अपने जज्बात भी पेश करता चलूं। दोस्तों, मुझे आज भी अपनी 10वीं जमात की अलविदाई तकरीर याद है, जिसमें मैंने अपनी तकरीर के इख्तिताम पे कुछ अशार कहे थे, जिनमें जब मैंने अपनी वो अशार यूं हैं कि हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ख्वाब में तो नहीं मिले, हाँ, लेकिन दूसरे ही दिन कुछ गली के नुक्कड़ पे मिले, कुछ चौबारे पे मिले। फिर सबने अपनी अपनी अलग राहें मुंतखब की, अलग अलग इदारों के राही बने। फिर हफ्ते में एक दो बार, फिर महीने में एक आध दफा मिलने लगे। फिर ईदैन पे इसी तरह, किसी छुट्टियों में, क्लासमेट्स की गेट टुगेदर में। फिर हाथों में डिग्रियों की फाइलें लिए रोजगार की तलाश में सरगर्दा रहे कि पापी पेट का सवाल था। समाज में नाक की ऊंचाई के मीटर बढ़ाने थे, खानदान में अब्बू की कॉलर जो खड़ी करनी थी। फिर और कभी शौक से मिले हों तो शायद एक दूसरे की शादियों में दुल्हा राजा बनते और बनाते हुए। फिर इसके बाद फूल किताबों में सूखने लगे। यहां से जब हम गए थे तब मसें अभी भीगी भी नहीं थी। आज देखो, गबरू नौजवान बने, एक दो बच्चों के बाप बने, यहाँ एक दूसरे से मिलने लगे हैं। दोस्तों, स्कूल के दिनों में ईद के बाद जब हम स्कूल आते थे तो उस वक्त आप तमाम को याद होगा कि हम लोग नए नए कपड़े पहने, जो हमारे ईद के सिले सिलाए होते थे, नए जूते पहने स्कूल में इतराते हुए दाखिल होते थे। आज बिल्कुल उसी तरह मैं भी आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। ये भी मेरा स्कूल का ड्रेस है और शूज भी, ये भी मेरा ईद का ड्रेस है और शूज भी ईद का ही लिया हुआ है। तो मुझे अपने स्कूल के दिन याद आते हैं। अजीज दोस्तों, बातें तो बहुत ही पेश करने के लिए अपने कुछ असातिज़ा कराम का मैं तस्करा करना चाहूंगा कि यादों का ढेर सारा सिलसिला शुरू है। जो दर्जों खतारें लगी हैं, तमाम असातिज़ा जिन्होंने हमारी जिंदगियां बनाई और अपनी जिंदगियां वक्फ की, इन सब की कुर्बानियों का एहसास न था उस वक्त। डांट डपट, रोक टोक सब सख्तियां लगती थी। अजीज दोस्तों, बड़ी बड़ी आंखों वाली बिलखिस बाजी, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, जबान से तो नहीं, बस सर्द निगाहें डाल दी तो बंदा वहीं ढेर हो जाए, वहीं जम जाए, खौफ के मारे तौबा तिल्ला करने लग जाए, लेकिन अंदर से नर्म। कभी मुस्कुरा दी तो तालिब इल्म झूम जाए कि आज बाजी खुश हैं। इन्हीं के पहलू में बैठी नाजुक सी आज़िमा बाजी साहिबा पहले डांटती, फिर मुस्कुरा कर मना करती, तब भी कुछ तलबा शरारत से बाज आते और कुछ कटी पतंग की तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते। फिर हमारे मास्टर ब्लास्टर गौसान सर, इनकी आंखें, इनके जुमले, इनकी छड़ी, भाई क़यामत का दूसरा नाम, जलजला ही आ जाए। मुजरिम तालिब इल्म में सर का मखसूस और मुख्तसर जुमला, क्यों, कौन है वो, जान निकालने को काफी नहीं बल्कि जान ही निकाल देता था। फिर दोस्तों, मोहतरम मोहिउद्दीन सर, इकराम सर, शाकिर सर, उर्दू का चलता फिरता AI, अगर आप देखना चाहें तो इनको देख लें। सारे स्कूल में धूम,
इनकी जबान की है। परकोटे सलीम सर टीचर कम फौजी ज्यादा लगते थे। इनको जब मैं देखूं तो पस मंजर में उनका एक जुमला घूमता था, परेड, सावधान, विश्राम। इनका रिगार्ड नहीं, उनका जुमला सुना हूं। फिर साथ ही साथ मुजीब देवनीकर सर पराठेदार मराठी बोलने वाला, मुस्लिम दाढ़ी वाला मराठी मानुस, उर्दू मराठी का हसीन संगम। मुझे चिट्ठियां मिल रही हैं, 1 से 2 हो गई कि वक्त मुकम्मल हो गया, और 1-2 असातिज़ा इकराम का तज़किरा है, वो मुकम्मल करके इंशाल्लाह मैं अपनी जगह ले लूंगा। मुंतजिब सर इतनी नजाकत वाला रियाजी का उस्ताद मैंने कभी नहीं देखा। इतनी नफासत छड़ी भी हाथ में पकड़े तो रियाजिया ने अंदाज में, वो भी नफीस लगती। अब्दुल गफूर सर रियाजी के मसलों का चलता फिरता चैट जीपीटी उस वक्त का हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे उस्ताद सलीम सर, भाई इन्हें तो हम उस्तादों का उस्ताद कहेंगे, वो अलग ही लेवल का बंदा था। अजीज दोस्तों, ये असातिज़ा ना होते तो मैं आज यहां ना होता, हम सब ना होते। तदरीस उनके लिए महज पेशा नहीं, वो ये इबादत है। अजीज दोस्तों, हम खुशकिस्मत हैं कि ये हमारे असातिज़ा हैं। मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन और भी साथी इंतजार में होंगे। और साथ ही साथ मुहिद्दीन सर से चिट्ठियां भी मिल रही हैं कि भाई ये हटे तो और भी कुछ बंदे हैं जो अपनी बात पेश करने के मुंतजिर हैं। दोस्तों और मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, जज्बात का एक सैलाब है जो छलक कर बाहर आने के लिए बेताब है, लेकिन वक्त की नजाकत है, वक्त की कैद है। 1-2 को देखा मैंने और कि वो अपने फोन चेक कर रहे हैं, शायद घर से फोन आ रहा हो उनका कि बंदी आज तो सबर कर ले, धनिया पुदीना अंडे गोश्त ला लूंगा बाद में, पहले प्रोग्राम तो जाने दो। मैं शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों तमाम असातिज़ा इकराम का और उस रब्बे करीम का कि अल्लाह ताला हमारे असातिज़ा इकराम की खिदमत को कबूल करे और आखिरत की कामयाबी और सदक़े जारिया का जरिया बनाए। और दरख्वास्त करता हूं उन तमाम असातिज़ा इकराम से कि वो भी हमें अपनी दुआ में याद रखें। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे उस्ताद ज़ीशान। इनके बाद उठ के अब बज़्मे जहां का और ये अंदाज है, उठ के अब बज़्मे जहां का और ये अंदाज है, मशरिक़ और मग़रिब में तेरे ही दौर का आगाज है। हाशमी सैयद शोएब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, महाराष्ट्र उर्दू साहित्य एकेडमी, मुंबई, वो तशरीफ लाएं और अपने ज़रीन ख्यालात से हमको महसूस फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टेज पर तशरीफ फरमा जनाब सदर साहब, अलमी एजुकेशन सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारान, असातिज़ा इकराम और साबिक़ तलबा, ये नहायत ही खुशी का मौका है कि ख़ास खान सर में एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया अलमी एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदारान से मिलकर कि साबिक़ा तलबा की एक मीटिंग हो। बहुत सालों से ये सिलसिला चल रहा था, मेरी भी सर से बात हो रही थी कि भाई इस तरह की एक मुलाकात होनी चाहिए, रस्मी मुलाकात होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे के तासुरात, एक दूसरे के ख्यालात और एक दूसरे के अचीवमेंट्स वो सामने आ सके। तो बहुत अच्छी पहल है, मैं उनके लिए, इसके लिए मैं सर को मुबारकबाद देता हूँ, साथ ही जिम्मेदारों को भी मुबारकबाद देता हूँ। मैं जो है महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। MPSC के ज़रिए मेरा वहाँ पर इंतखाब हुआ है। उससे कबल मैं ETV उर्दू में था, 5 साल वहाँ मैंने खिदमत अंजाम दिए बहैसियत रिपोर्टर। ETV उर्दू में भी हमारे उदगीर के तकरीबन 3 लोग ETV उर्दू में थे हैदराबाद में। ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है उदगीर वालों के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो पहला चैनल था हिंदुस्तान का, उसमें उदगीर के 3 लोग थे, मैं, मूसा सर के साहबजादे इमरान हाशमी और शहबाज सर के छोटे भाई जरपटे पाशा। उसके बाद फिर इनकलाब में मैंने खिदमत अंजाम दिया 5 साल बहैसियत सिविल एडिटर। तो उस दौरान बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते थे, मुसाबक़ती इम्तहानात, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिया मैं। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम दिया, उसके अलावा नेट भी दिया मैंने। अभी हाल में PhD मेरा कंप्लीट हुआ है सीरतुन नबी पर। फिर उसके बाद जब अलग अलग इम्तहानात के दौरान MPSC में भी जो है ना 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का होता है और एक जो है जनरल एग्ज़ाम होता है जो अलग अलग पोस्टिंग के लिए होता है। तो मैंने जो एग्ज़ाम दिया था ये पोस्ट के हिसाब से था, तो उर्दू की पोस्टिंग के लिए थी, उसमें मैंने अप्लाई किया था।
तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए मेरा सिलेक्शन हुआ। तो गुज़िश्ता 8 सालों से मैं वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और वहाँ रहते हुए उदगीर के 2 असातिज़ा ऐसे हैं जिनको उर्दू अकेडमी का अवार्ड मिला है। एक तो हमारे अबुल कलाम सर हैं यहाँ बैठे हुए और सलाउद्दीन कुरैशी, ये 2 असातिज़ा को जो है बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है। फिर उसके अलावा बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उर्दू अकेडमी की वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशा हूँ। अभी हाल ही में जो है एक स्कीम के ज़रिए गौस खान सर ने इसको इम्प्लीमेंट करवाया है, जो स्कूलों और कॉलेज को हम लोग माली ताउन देते हैं अदबी प्रोग्राम करने के लिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक प्रोग्राम हो गया है उदगीर में अलमिनी स्कूल में, और इंशाल्लाह आगे कोशिश ये रहेगी कि जो अलग अलग स्कीम्स हैं जैसे सेमिनार्स वगैरह हैं, तो डीएड कॉलेज में चूँकि बड़ा कैंपस है और ऊपर हॉल भी अच्छा है, सर ने मुझे बताए थे, तो यहाँ हमारी कोशिश है कि एक अच्छा शानदार प्रोग्राम हम लोग यहाँ मुनक़िद करें ताकि उर्दू का फ़रोग़ भी हो और हमारे इदारे का नाम भी हो। अब कोशिश ये होती है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि सर ने जो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, पहल की है, इसमें मैं मशवरा ये देना चाहूँगा कि एक ऐसा सर ग्रुप बनाए जो हमारे जो साबिक़ तलबा हैं जिन्होंने क्लास 1 ऑफिसर या क्लास 2 ऑफिसर के अहदे पर फायज हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जाए और वक्तन फ़ौक़तन जब भी वो उदगीर आएँ तो एक प्रोग्राम रखा जाए करियर गाइडेंस का। नए नए कोर्सेज जो आते हैं, नए नए क्या बोलेंगे प्रोजेक्ट्स जो आते हैं, तो वो हमारे जो तलबा हैं जो स्कूल में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हम उनको रूबरू करा सकें ताकि नई नई चीज़ें मालूम हो सकें। ये ना हो कि सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग और डीएड बीएड ये लाइन से हटकर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें हमारे तलबा खिदमत अंजाम दे सकते हैं। तो उसके लिए एक साथ ग्रुप बनाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो सर ने तो बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है, इसी तरह के प्रोग्राम होना चाहिए, खासतौर से तहनीती प्रोग्राम होना चाहिए। हमारे तलबा जो पूरे हिंदुस्तान भर में फैले हुए हैं, अलग अलग पोस्ट पर कायम हैं, तो जब भी किसी का अगर कोई कहीं सिलेक्शन होता है या किसी जगह पर तकर्रुर होता है, तो होना ये चाहिए कि उसके बड़े भाई में तहनीत होना चाहिए, क्योंकि हमारे शहर में और हमारे इदारे में अगर किसी की तहनीत होती है तो उसकी हौसला मंदी और हौसला अफजाई का मकाम और होता है। बाहर तो होते ही रहते हैं, लेकिन हमारे शहर में अगर खुद के घर में, खुद के इदारे में अगर किसी की हौसला अफजाई होती है तो उससे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है और वो अपने रूट्स में काम करने के लिए फिर वो बच्चे तैयार होते हैं। उनको फिर फिक्र होती है कि भाई हम हमारे बच्चों के लिए भी कुछ करें, हमारे जो गांव वाले हैं, हमारे स्कूल वाले हैं, तो उनके लिए भी करने का जज्बा पैदा होता है। तो ये चंद चीज़ें थी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इशा का वक्त भी हो रहा है। तो मैं आखिर में तमाम मुंतज़मीन को फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ और ये ख्वाहिश जाहिर करता हूँ कि उर्दू अकेडमी की जानिब से जो भी इदारे के लिए या उर्दू वालों के लिए हो सकेगा, मैं इंशाल्लाह उसके लिए काम करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अलमीन सानवी वाला सानवी स्कूल के प्रिंसिपल साहब गुलाम गौस खान साहब कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं। गुलाम गौस खान सर। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी बच्चों के ख्यालात का इजहार करने का इरादा है, लेकिन वक्त बड़ा जालिम और वक्त की कमी भी है। बहुत सारे बच्चे हैं अपने अपने ख्यालात, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो इस ग्रुप पर अपने ख्यालात का इजहार करें और जो भी अपनी बात है उस ग्रुप पर अपनी बात नोट करवाएं, क्योंकि वक्त की बड़ी कमी है। अब अजान इशा की भी हो गई है और हमें डिनर भी करना है। तो मैं तमाम बच्चों से माजरत के साथ ये प्रोग्राम जहाँ तक कि मैं खींच सकता था मैं खींच चुका, और वजह यह है कि आपका भी वक्त बहुत ज़्यादा अहम है। मैं अपनी बात में भी, वीडियो में भी कहा था कि आपका वक्त बहुत ज़्यादा अहम है, मैं हम उस वक्त की बड़ी कदर करते हैं। तो मैं यहाँ पर तलबा के इधर ख्याल को यहाँ ख़त्म करता हूँ, लेकिन माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ किसी और मौके पर इंशाल्लाह जो है तो इसका ख्याल रखा जाएगा। मुझे माफ़ कर दीजिए इस मामले में। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मोहतरम शेख मोहम्मद अकबर साहब, सेक्रेटरी अलमीन एजुकेशन सोसाइटी को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपना सदारती खुतबा दें। मोहतरम शेख मोहम्मद अकबर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ आ रही क्या नहीं? आवाज़ आ रही क्या नहीं?
टकराई तो नहीं ना? यहाँ आवाज़ टकरा रही, इस वास्ते बोल रहा हूँ। आपको आवाज़ आ रही? चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत दिनों से ये ख्वाहिश थी कि पुराने बच्चों को हमारे इदारे से जोड़ दें, वो एलुमनी के नाम से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये वक्त अब आया। कई सालों से मेरे जहन में था, सब लोग गौस खां को क्रेडिट दे रहे। एक्चुअली मैं गौस खां को पहले बोलूँ कि भाई ये इसमें करो बोल के। एक्चुअली गौस खां सर तो यहीं से ही पूछ लो आप उनको। मैं बुला के बोला, अरे भाई ये एलुमनी का जहन में मेरे बहुत दिनों से है, एलुमनी मनाओ। एलुमनी मनाने का मकसद कुछ भी नहीं था, मकसद सिर्फ एक ही था कि जितने बच्चे हमारे इदारे से गए, कोई डॉक्टर्स, कोई इंजीनियर्स, कोई आईटी में, कोई हर फैकल्टीज में चले गए, लेकिन आज तक उनका तालमेल नहीं हुआ। और हमको भी देखने नहीं मिला कि भाई बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या पोजीशन है। हम जो दरख्त लगाए थे, एहसान अनवर साहब बोले उसकी पोजीशन आज क्या है। तो मैं गौस खान साहब को बोला यहाँ कुछ लोग नहीं, तो बोलिए एक बार सब क्रेडिट ले रहे हैं और गौस खान साहब यहाँ से सामने। मैं गौस खान साहब को बोला इस साल मैं एलुमनी के मेरे जहन में है और ईद के दूसरे दिन मना हुआ। उसकी वजह भी ये है कि बच्चे सब ईद को आते हैं, सेकंड डे हम उनको बुला सकते हैं आसानी के साथ, और दूसरे दिन भी संडे है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि आज मौका मिला और पूरी मेहनत इसमें गौस खान साहब कर रही है, बिल्कुल सही है। अब आप लोगों का मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सोसाइटी की तरफ से। और इस वक्त ये मंजर देखकर इतनी खुशी हो रही कि ऐसा अनवर साहब बोले कि भाई जो दरख्त हम लगाए थे आज इस ढंग से हमारे सामने, ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लेकिन ये जो भी कोशिशें हैं उसके पीछे हमारे जहन में एक बात थी। जिस वक्त अब 1980 में हम ये इदारा शुरू किए तो हम देख रहे थे बच्चों को कि तालीम का जो म्यार है बहुत गिरा हुआ था, तरबियत का मामला बहुत बेहद खराब था, और दीन का मामला तो सवाल ही न पैदा होता। तो हमारी बिल्कुल फिक्र थी, बाज़ाब्ता हमारे जहनों में पेनेट्रेट थी बात कि बच्चों को तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत अखलाकी और दीनी अंदाज से हो। भले उसमें हम कामयाब हुए नहीं काम हुए, वो जितना काम है वो आपके सामने है, लेकिन कोशिशें हम बराबर करते रहे और उसी खतूत पर सोचते भी रहे, कोशिश भी करते रहे, अल्लाह से दुआएं भी करते रहे। ऐसा नहीं कि हमारे कारकर्दगी के पर ये डिपेंड नहीं है। हम जो भी करते हैं वो अल्लाह का अगर फजल करम मदद रही तो हम उसको कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। ये असल बुनियाद उसकी ये है। लेकिन हमारी फिक्र रहती थी, कोशिश रहती थी और अल्लाह से दुआ करते थे हम। एक बात तो ये रही। दूसरी बात, असातिज़ा का अपॉइंटमेंट करते वक्त हमारे जहन में एक बात रहती थी कि अच्छे बच्चे, तालीमी मियार वाले बच्चे, अखलाकी मियार वाले बच्चे और उनका बैकग्राउंड देख कर रहे। कुछ असातिज़ा को तो इब्तिदा में मैं उनके घर को जाके बुलाया हूँ, जबकि सिर्फ मैट्रिकुलेट थे, वो डीएड कर रहे थे। अब ये तफसील नहीं है मुझे बोलने की, लेकिन मेरे जहन में जो आ रहा है आपके सामने रख दे रहा हूँ। तो बहरहाल इसके पीछे सोसाइटी की एक सोच थी और उसके बाद असातिज़ा ने जो कोशिश की, दिल लगा के मेहनत की और हमारे फिक्र के हिसाब से उन्होंने बराबर चलते रहे और उनके जहन में भी ये बात बार बार आती रही और हमको बार बार हम उनको टारगेट करके रिवाइज करते थे वो बात को कि भाई हम इसके लिए मकसद से बोले, ये मकसद से बोले, ये हमारा मकसद है और हम ये चाहते हैं। तो अल्लाह का फजल है कि असातिज़ा की मेहनतें, हमारी कोशिशें और फिर हमारा मिजाज और हमारी तड़प, नतीजे में आप सब चीज़ें प्रैक्टिकली आपके सामने है। कुछ चीज़ें जो आपके सामने मुख्तसर से रख देना चाह रहा हूँ वो ये है कि सोसाइटी की शुरुआत हुई थी, बहुत मुख्तसर से हुई थी। शॉर्ट में बोलते हम 10 लोग थे। एक अलमीन के नाम से इदारा बेंगलुरु में चलता था, वो सुने कि बहुत अच्छा चल रहा है तो उसकी फिक्र भी अच्छी है, तो वहाँ गए, उनसे बोले कि भाई हम खोलना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अलमीन का नाम दे दिया। और डॉक्टर मुमताज़ साहब थे जो बहुत अच्छी फिक्र लेकर चलते थे। बहरहाल उससे हम शुरू किए। शुरू करने के बाद
लोग क्या करते हैं कि चंदा जमा करते और इदारे कायम करते। हम वैसा नहीं किए। हम सबसे पहले हमारे पूरे मेंबर्स हर महीने को पैसे फिक्स किए कि हर शख्स 100 रुपये जो देगा, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता काफिले को मरम्मत चलाते रहेंगे। तो वैसा ही करते रहे। हमारे मेंबर्स बाज़ाब्ता महीने को पैसे देते थे, और उसके बाद हमारा स्कूल शुरू हुआ। शुरू होने के बाद तो मुख्तसर, बाद में जब पैसे कम पड़ते थे तो हम किसी के पास जाते नहीं थे। एक ऐसा कोई अच्छा आदमी है, अरे भाई महसूस करता है कि भाई हम अच्छा भाई 100 रुपये हमारे को जरूरत है, देख दे। दुकान पे बैठे बैठे बुलाना, अरे भाई 100-200 रुपये कम पड़े, बेचारा दे देना, रसीद फाड़ के वहाँ समझे देना। तो ऐसा करते करते हम उस सोसाइटी ने हमारा इदारा शुरू करे। एक छोटे से कमरे में शुरू किए। एक अब्दुल्ला कादिर साहब का मकान था, उनके बाजू एक यूसुफ कादिर साहब का वो था। इस वास्ते बोल रहा हूँ आपके जहन में भी कुछ मंजर रहे कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी और किन परेशानियों से हम आए। एक कमरा था, वो कमरे में स्कूल शुरू करे। वो हजरत कुछ दिनों के बाद बोले खाली कर दो। हम परेशान हो गए, क्या करना भाई। अच्छा, हमारी पूरी टीम की हालत ये थी कि ना हम सियासी तौर पर मजबूत थे, ना माशी तौर पर मजबूत थे, ना पॉलिटिकल हमारा कोई सोर्सेस थे हमारे पास। सिर्फ एक ही बात हमारे पास थी, वो हमारे पास एक जज्बा था, एक तड़प थी, उसको लेके चलते थे हम। तो फिर वहाँ से हम निकाले गए, उन्होंने बार बार फोर्स के निकले। फिर हमारे खड़काड़ी पे मोहनपुरी की एक जगह आ गए, फिर दूसरी जगह चले गए। ऐसा करते करते इसलिए ये मंजर पेश करूँ आपको कि खमरुद्दीन साहब गले काटू बोल के एक साहब थे जो हमारे दुकान में बैठते थे। बेचारों को भी मिली तरह बहुत एहसास था, हमसे भी हमारा भी उनको एहसास था कि बच्चे बहुत तड़प से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन ये बोले, अरे मैं यहाँ पे किराए से कब तक लेते रहेंगे, कैसे पैसे डालते रहेंगे, क्या करते हैं। तो एक जगह है, बोले अब जब प्राइमरी है, एक दरगाह का वहाँ वो था, देखे होंगे पुराने लोग, मस्जिद नहीं थी वहाँ, दरगाह थी और एक मस्जिद का पिछला ऐसा टिब्बा, क्या बोलते हैं सामने की दीवार जहाँ खिबला रुख होते हैं पर, वो थी। शमला भी वो टूटका था। तो उन्होंने क्या करे, मियाँ वो जगह खाली है, मैं औकाफ से लाके तुम्हारे को दे देता हूँ और वहाँ तुम कायम करा लो। तो हजरत उन्होंने अप्लीकेशन लिखी, मैं साइन कर दिया, उन्होंने औकाफ में गए, मेरे को परमिशन ला के दी थी कि भाई औकाफ में किराए से तुम्हारे को 11 महीने की दी थी। मगर वो क्या परेशानी थी, वो हम जगह पर कब्जा करें, हमारे पीछे पख लग गई। पख ये लगी कि भाई ये जमात के लोग हैं, इन्होंने ऐसे हैं, इन्होंने कब्जा करना चाह रहे। तो वहां से जो परेशानी शुरू है हमको, तो ऐसी परेशानी हुई कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। अपनों से भी सताए गए और गैरों से भी सताए गए। तो वहां कम से कम 12 साल कोर्ट में केस चलते रहे। एक तक तो जिला परिषद से फाइट करते रहे, क्योंकि आजू बाजू जिला परिषद के वो थे, क्वार्टर्स थे, जो पुराने लोग देखे होंगे, तहसीलदार का घर था, हमारे बीडीओ का घर था, और आजू बाजू दूसरे लोग थे। तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि किसी मौके पर उसको कब्जा कर लें। लेकिन ये हजरत हमको दिए, लेकिन हमको परेशानी में डाल दिए। परेशानी ये हुई कि उसके नतीजे में इतना सताए गए कि कोर्ट कचहरी करते करते उतना पैसा खर्चा करे हम कि उसमें हम नई जगह प्लॉट लेकर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि उसके बाद वो कि मस्जिद हम कायम किए। तो मस्जिद जो कायम किए, मैं और इस्माइल साहब मिलके, वो मस्जिद के एरिया में भी कोई आना नहीं चाहते थे, क्योंकि आजू बाजू गवर्नमेंट के लोग थे। अगर मुसलमान गए वहां हुआ तो देखे तो फिर कैसा परेशानी। तो हम और इस्माइल साहब मिलके पीछे के इस पे ईंट की एक वो रखे, और हिशामुद्दीन खतीब के बड़े भाई के पास जाके हम बोले, भाई हमको ये 60 टीन होना, मस्जिद चालू करना चाह रहे हैं। तो अभी उन्होंने जिंदा नहीं पूछ ले, उन्होंने 60 टीन दिए हमारे पास के, हम सोसाइटी में के वो डंडे लगाए, और इस्माइल साहब ने मिल के वहाँ शुरू किए, मस्जिद शुरू किए। और महबूब साहब बोल के एक हमारे पास जमात के जमात थे चाकुर के, उन्होंने हम उनको वहाँ मस्जिद में इमामत के वास्ते रखे। अब थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वो तहरीक शुरू हो गई हमारी मुखालिफत में, और इतनी हुई कि बस पूछो मत, बहुत परेशान हुए हम। लेकिन खैर अल्लाह ताला वो दिन निकाल दिया। अल्लाह ताला बाद में हमको हाई स्कूल की जगह दिया, हाई स्कूल की जगह खरीदे हम। फिर हाई स्कूल की जगह के बाद बिल्डिंग अब आपके सामने है। उसके बाद अब ये डीएड है, डीएड कॉलेज की जगह ये बिल्डिंग 4.25 एकड़ जमीन है, इसकी ये बिल्डिंग आपके सामने है। ये इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि भाई हम जहाँ से शुरुआत किए थे, तो केजी से शुरू करके हम आए थे यहाँ,
80 से, और स्टेप बाय हम चलते रहे। लेकिन एक बार यह हुआ कि मैं शोलापुर गया, हमारे अब्दुल जलील साहब लेक्चर बोल के थे, हमारे मेंबर थे, वहाँ जाकर एक बिल्डिंग बताई सोशल कॉलेज की। उस दिन मेरे जहन में आया कि भाई ये हमारी बिल्डिंग कब बनेगी, इसी से हमारे कब ख्वाहिश होंगी। बर अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह लाकर हमको यहाँ खड़ा कर दिया। तो प्राइमरी, हाई स्कूल, डीएड और ये बिल्डिंग्स और आप लोग, और इस वक्त 2100 करीब तलबा हमारे पास हैं। इसमें हमारे प्राइमरी के मामले में इस्माइल साहब जो हमारे प्राइमरी के टीचर थे, हेडमास्टर थे, हैं अभी चले गए वो, उनका बहुत ताउन एज ए हेडमास्टर भी रहा, एज ए सोसाइटी भी रहा, एज ए दोस्त भी रहा, और एज ए मिल्लत के तरफ के हिसाब से भी रहा, जितने से हम वहाँ बहुत स्टैंड हो सके। बहुत उनके हमारे साथ कुर्बान थे। अब तो हमारे रिश्तेदार बन गए, समझे? तो हंस रहे बच्चे, क्या गया मैं क्यों बोलिए नहीं तो है। और इस जगह में हमारे हाई स्कूल की जगह खरीदने में एक बात यह है, ख्वाजा मोइन साहब कुरैशी उस जगह को खरीदते हो तो कलालों की जगह थी, आपस में उनका टकराव था। भाई ये इस वास्ते बोल रहा हूँ, सब लोग बेचैनी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन इस वास्ते बोल रहा हूँ कि आप लोगों में जहन में ये रहे कि भाई किस परेशानी से, क्योंकि ये बाद में सब जमा होने का नहीं बोल सकते, और हालात भी कैसे रहते नहीं बोल सकते, लेकिन जिन हालात से हम गुजरे, जिस परेशानी से आए, तो वहां पर ख्वाजा मोइन साहब कुरैशी ने वो जगह लेते हुए जितनी मेहनत की है कि 30 दिन तकरीबन 27 दिन उन्होंने लीव लेकर बैठे और उसको प्रेशर करते रहे कि भाई तू हमको दे, लेकिन आपस के लड़कियों से उन्होंने इतना सताया, उन्होंने भी इतना सताया कि एक एक को पकड़ पकड़ के जाकर रजिस्ट्री करना पड़ा हमारा। मगर वो आज उतनी कोशिश के नतीजे में वो जगह आपके सामने है। इस बिल्डिंग के बारे में यह है कि ये बिल्डिंग बनने के बाद मेरे जहन में था कि भाई बाउंड्री के वाल का मसला है, बाउंड्री के लिए तो बहुत खर्चा आने वाला है, लेकिन ये बाउंड्री जितनी बने वाली है बंथोड़े साहब की दी हुई पैसों की है। फिर हम उनको इंसिस्ट किए कि भाई हमको कंप्यूटर की जरूरत है, तो बेचारे हमको इसी महीने में एक 10-15 दिन पहले 5 कंप्यूटर पे आ गए। बहरहाल इसलिए मैं ये जिक्र कर रहा हूँ, जिन जिन के एहसानात हैं, कई लोगों के तो मैं एक वक्त में नहीं बोल सकता, लेकिन इदारे में कई लोगों के एहसानात हमारे साथ हैं, कई लोगों की मदद हमारे साथ है, और कई लोग जज्बे के साथ हमारे साथ आए वाले हैं। कुछ तो मर गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और कुछ लोग हमारे साथ हैं। लेकिन ये काफिला इतनी परेशानी से चला है, कुछ हम चंद लोगों के साथ हम इसको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते यहाँ तक आए। तो जब प्राइमरी का जब मसले आते थे, परेशान होता था, तो मेरे जहन में एक आता था, वो हिंदुस्तान आज़ाद हुए बाद एक गीत बना था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो उस वक्त मेरे जहन में आना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस इदारों को बच्चे रखना संभाल के, ये मेरे जहन में आता था हमेशा। तो क्योंकि वो हम पर बीती है, हम जितने रात तड़पे हैं, सोए नहीं, परेशान हुए हैं, तो वो हमको उसका एहसास है। एक बात मिसाल इससे दे सकता हूँ मैं कि एक औरत जो बच्चा पैदा करती है, उसको जो तकलीफ रहती, अडॉप्टेड बच्चे करने वाले को वो एहसास नहीं रहता। तो वैसा क्या है, हमको जो एहसास और तड़प हुए वाली है, जिस हालात से हम गुजरे हैं, जैसा डीएड के वक्त एक मसला ऐसा आया, डीएड की परमिशन मिलने का मसला आया, बिल्डिंग नहीं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स में हम बैठने नहीं लगे। हाँ, सलीम साहब यहीं से हालत ऐसी आ गई कि हमारे पास के पूरे खत्म हो गए, खर्च लिए तो खर्च भी खत्म हो गया। अब परमिशन का वक्त आया तो परमिशन के वास्ते जो पैसे होना था हमारे पास, वो पैसे नहीं। तो एक साहब को मैं फोन किया, मैं बोला भाई मेरी ऐसी जरूरत है, तो साहब मेरे को बोले कि भाई मेरे पास तो नहीं। अरे मैं बोला अगर पैसे तुम नहीं दिए तो मैं जितनी कोशिश करो मर जाता हूँ। बोला फांसी लेकर मर जाना पड़ता। बोला ये हालत में हो। बोला मैं अरे मियाँ तो भी क्या कर, बोले तो फलां को ऐसा फोन कर तेरा होता। ये सलीम साहब यहीं से एक बेंगलुरु के एक बिल्डर को फोन किए, सलीम साहब को भेजे, सलीम उस्ताद को, वो सब उस वक्त 3 लाख रुपये हमको दिया, तो हमारी नैया पार हो गई। तो ये सरसरी चीजें कुछ आपके सामने ला रहा हूँ इस वास्ते कि भाई आपके सामने मंजर भी रहे, हालात भी रहे, और इतनी आसानी से हम नहीं आए हैं जितना आपको लग रहा है। तो शेर एक याद आता है मेरे को कि सदियां बीती हैं किस्मत आजमाने के लिए, क्या कुछ नहीं लगता घर बसाने के लिए, आज के दिन हंसने वाले दौरे माजी को देख कितने दिन रोना पड़ा है मुस्कुराने के लिए। आज हम यहाँ बैठ के मुस्कुरा रहे, लेकिन हम जिन मुश्किलात से, हालात से, परेशानी से आए, और अल्लाह का शुक्र ये है हम कमर्शियल इदारा नहीं बनाए,
इसमें हम फायदा उठाने की भी नहीं सोची। स्टेप बाय स्टेप हम प्राइमरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते डेवलप करते यहाँ तक आए, अल्लाह का शुक्र है। अब एक बात यह है कि वो यारब दिल मुस्लिम जो अभी हम पढ़े तो वो हमद दुआ जो है वो बाज़ाब्ता सोच समझ के बनाई गई थी। और हमारे पास एक मोहतरमा खातून टीचर थी रशीदा बेगम बोल के, उनको बाज़ाब्ता बिठा के वो पाकिस्तान की जो अंदाज आता था वो सिखाता था, मैं बाज़ाब्ता बैठ के, और वो हुआ। तो उसके पीछे भी दुआ किया, आप जरा गौर से उस पर गौर करो पूरी दुआ पर, कि उसके अंदर एक दुआ है जिसके अंदर एक तड़प है, एहसास है, मिल्लत का वो है। तो इसके साथ ही हमने उसको वो दुआ को वो किया था। बहरहाल बड़ी खुशी ये हुई कि ये जो अभी तकारीर किए लोग, बेहतरीन तकारीर किए, एहसास किए, तो ये जो हमको फल मिल रहा है, मैं उनका शुक्रिया भी करता हूँ। और कहाँ कुछ कोताही भी हम लोगों से हुई है सोसाइटी की तरफ से, एहसास, तो उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ। अगर कहाँ गलतियाँ हुई हो तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमको भी पॉइंट आउट करें आप। और एक बात मैं जाते जाते बोला चाहता हूँ, इब्राहिम भी हमारे पास है। इब्राहिम हमारे पास कलर बोल के आए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इब्राहिम ने हमारे सोसाइटी के मामलात में, प्राइमरी में, हाई स्कूल में, जूनियर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, और हमारे हर मामले में हमारा ताउन करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी हमारे साथ उसका ताउन है, इसलिए मैं ख़ास तौर पे उसको इस स्टेज पे बुलाकर बिठाया हूँ कि हर मामले में, और हमारा मुखलिस साझा हुआ। तीसरा ये है, आखिरी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई एक साहब एक बात कुछ बोले तो बेंगलुरु में एक IAS ऑफिसर आ गया, इसलिए आपको ये बोल के चल जा रहा हूँ कि भाई उन्होंने ये बोले थे अपनी तकरीर में कि ब्यूरोक्रेट से अपन ताल्लुकात रखना चाहिए, यानी गवर्नमेंट मशीनरी के साथ, तहसीलदार है, डिप्टी कलेक्टर है, पुलिस डिपार्टमेंट है, या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से उससे आप टच में रहना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के क्या हालात हैं, क्या उनके स्कीम्स हैं, और वो कैसी चलती, उनका तरीक़ेकार क्या है, ये समझ के चलना चाहिए। जाके हम उनसे सबक भी सीखें और अपने आइंदा डेवलपमेंट के लिए भी क्या है कर सकते। हम उससे दूर होते हैं तो वो दूर नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं तमाम हज़रात का शुक्रिया, तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आए, वक्त दिए, हमारी बातों को सुने, हमारे एहसासात को सुने, और जो बच्चे यहाँ से गए उनको सुने। मैं तमाम हज़रात का शुक्रिया और सबका इस्तेमाल करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और हमारे इदारे को भी दिन दुगनी रात चौगनी दे। अल्लाह हाफ़िज़। ये अलमीन एजुकेशन सोसाइटी आभार शेख मोहम्मद अकबर साहब, जिनसे आप इस्तक़ाला हासिल कर रहे हैं। अब इनके बाद इज़हार तशक्कुर के लिए अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के सदर डॉक्टर इसा खान साहब शुक्रिया अदायगी अंजाम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस रिकनेक्टेड प्रोग्राम में सारे हमारे स्टूडेंट्स शामिल हुए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर इतने सारे स्टूडेंट्स अगर आते हैं तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। ईद के मौके पर जो मुलाकात होती है वो ईद मिलन की भी प्रोग्राम, फिर रिकनेक्शन की, रीयूनियन की भी। ये फूल हमारे हैं, ये खार हमारे हैं। इस गुलशन को हमने लहू से संवारे हैं। अकबर साहब ने जो बताया लहू से संवारे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कनेक्टेड हुए। डॉक्टर हमने एक सोसाइटी बनाने के बाद हमको जगह मिली तो ऐसे ही मिल गए, और सोसाइटी के मेंबर तो ऐसे ही बन जा रहे हम। तो नहीं भाई, ये सारी चीज़ें इतने मुश्किल वाली काम है कि ऐसा कोई हम बहुत बड़ा एक पोस्ट पर बैठकर हम ये नहीं कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाओ कि इस चीज़ को संवारने के लिए हर चीज़ से गुनाह पना होता है। अभी हमारे कुछ ज़मीन लेने से लेकर ज़मीन के कंस्ट्रक्शन तक हमको संवारने में कितनी मुश्किल होती है, ये अगर आप अंदाज़ा लगा ले तो इससे समझ जाओ कि इदारा किस तरीके से बना है। मैं तो बाद में नेक्स्ट आया हूँ। हमारे सीनियर लोग जैसे अकबर साहब, कामदिन भी हैं, मरहूम सिद्दीक साहब हैं, खाजा भी हैं, ये सारे लोग इतनी मेहनतों से अपने हाथों से खंभे गाड़ कर जिस इदारे को बनाए हैं वो आज हमारे सामने माशाल्लाह से ये फल है। और ये जो तकारीर हुए हैं हमारे डॉक्टर्स, हमारे IAS ऑफिसर, हम लोगों से हम उनकी एक रिक्वेस्ट हमें कि आगे भी हमें मिला है और हमारे को गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस इसका मतलब ये नहीं कि भाई रिकनेक्टिव हम प्रोग्राम ही लें, आप अपने तसव्वुरात इस लाइन से भी आप डाल सकते हैं इस मौके पर।
اور یہ جو مجھے لاسٹ ٹائم کا دیا گیا ہے اس میں سب سے بڑا پرابلم ہے کہ کھانے کے بیچ میں ہوں، کھانے کے انتظام کے بیچ میں ہوں میں ہوں. مجھے شکریہ ادا کی کا لاسٹ میں دیا گیا ہے. نہ اس میں کچھ آپ کو ٹیکنیکل بول سکتا ہوں، میں ایک انجینئر، میں ایک ڈاکٹر ہوں. پھر اس کے بعد میں یہ نہیں بول سکتا ہوں کہ یہ بہت بڑا بزنس مین ہے، اس کو آپ کو کس طریقے سے ٹیکنیکلی کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے یہ کہ یہ سارے جو ہمارے ادارے میں ہوئے ہیں، یہ سارے بندے جو آپ کے سامنے تقاریر کے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی ہے، پھر جرنلسٹ ہے جیسا عرفان ہمارے وکیل سے ہے، ہمارے مصباح سر کے بھائی ہیں. تو یہ سارے چیزیں بننے میں بہت 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 بڑا کشٹ لگتا ہے. ایک کمہار جب مٹی لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو سنوارنے میں، اس کو بھوننے میں، اس کے بعد اس کے کھنک بنانے میں جو فصل ہمارے ٹیچرز نے خاص طور پر، یہ ہمارے منتجب سر، سلیم استاد سر، خاص طور پر میرے استاد موسیٰ سر، یہ بنانے میں بہت 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 محنت لی ہے. جو جس طریقے سے مولڈنگ ہوتا ہے وہ مولڈنگ تک لانے کے لیے آپ کو اندازہ نہیں لگا سکتے. ابھی ماشاء اللہ ایک میکینیکل انجینئر بھی مجھے بتا رہے تھے کہ میکینیکل انجینئر سول انجینئرس ہیں، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اسٹرکچرل ڈیزائن کیا ہوتا ہے. وہ اسٹرکچر فاؤنڈیشن سے لے کے ایلیویشن تک، ایلیویشن سے لے کے اس کا ڈیزائننگ تک وہ آدمی پورا کرتا ہے. اور وہ ڈیزائن کرنے سے پہلے اس کو ایک منصوبہ بنانا پڑتا ہے کہ یہ اسٹیمیشن اتنا پہلے لگے گا اور اتنے مزدور لگیں گے، اتنا پیسہ کاسٹ لگے گا. تو یہ اسٹیمیشن کرنے والے کون؟ انجینئر. وہ بنے کون؟ عالمین سے. اللہ سے دعا ہے یہ ساری چیزیں ہم لوگ جتنا ہو سکتا ہے پاسبل بنے. میری ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں بنانے کے بعد اگر آپ کے کچھ سجیشنس ہے، یا سمجھو ہماری آج تک کی زندگی ادگیر میں چل رہی ہے، تو ادگیر میں ہم لوگ تو لائن لگا کے شیواجی کو بھی جا رہے ہیں، ادے گیری کو بھی جا رہے ہیں، مگر مسلمان ادارہ ہے بھائی، ہم کو کچھ نہ کچھ تو بھی ہمارے پاس تو بھی کہہ رہے اتنا لائن لگا کے آئے. ہماری خواہش ہے ہم شاملال کو جا رہے ہیں ایڈمیشن کے واسطے، ادے گیری کو جا رہے ہیں انجینئرنگ کرنے جا رہے ہیں، میڈیکل کو جا رہے ہیں. ہمارے پاس بھی اللہ سے دعا ہے، آپ لوگوں سے بھی التجا ہے کہ ایسی کچھ کچھ ہمارے پاس ٹیکنیک ہے. جیسا ہمارے کچھ فورن سے بھی لوگ ہیں، پھر آئی ایس آفیسر بھی ہے. ہمارے بتایا کہ ٹیچرس کے بارے میں اگر آپ سمجھو آپ کو بائی چانس کچھ مدد چاہیے، جیسا جرنلسٹ صاحب بھی ہمارے کو بتایا کہ ہمارے پاس کچھ مدد چاہیے. یہ ساری چیزوں کے لیے ہم ایک جازب کاغذ ہیں. ہم تمہارے لیے ہم کھلی کتاب کے جیسا ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں. کبھی بھی ریکنیکٹ کے حساب سے نہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری ترقی ایسی ہو، ہمارا امام، ہمارا مسلمان، ہم جو اے آئی کے زمانے میں جی رہے ہیں وہ جینے کا کچھ ہمارا منصوبہ بنے. ہم کسی قوم کے یا ہمارے سمجھو آنے والی جنریشن کو ہمارے کچھ نہ کچھ تو دیں. یہ چل رہا ہے بھائی، آئے تھے فلاں صاحب، آئے تھے فلاں صاحب بولے تھے اور فلاں صاحب ان کا انتقال ہو گیا، مگر آج اس کا بیس کیا ہے، اس کے اندر کتنے لوگ کیا کر رہے ہیں. تعلیم چپ ایسی نہیں ہے. سمجھو موسیٰ صاحب نے مجھے میتھمیٹکس پڑھائے تھے، آج کہاں ہیں ان کے خود کے اعمال؟ ان کے بچوں میں دیکھو، ہماری خود کی اسماعیل سر میں دیکھو. ابھی جو بچے جو ہمارے ٹیچرس ہیں ان کے فون میں ان کے اندر حلال کمائی کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے، وہ ڈیفینیشن کا پورا ذریعہ آپ یہاں پہ دیکھ لو. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے سر، یہ بات اتنی بیسک ہے کہ آج جو کمائی ہم کما رہے ہیں وہ کمائی ہمارے بچوں میں، ہمارے اولاد میں وہ چیز آنا چاہیے کہ وہ چیز کے اندر میں اتنا سارا ٹائم تو نہیں لوں گا کیونکہ تو بہت ساری مجموعہ جمع ہو گیا ہے. کھانے کا مسئلہ رہتا ہے. اللہ مجھے 1-2 منٹ کا ٹائم ہے، مطلب میں بہت بڑا تقریر والا تو نہیں ہوں، مگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ ہر ایک بندہ اتنی ہی کمائی کرے، اتنا ہی احساسات رکھے قوم کے لیے. تو جو چیز کر سکتے ہیں کہ وہ تو جس طریقے سے ہمارے ٹیچرس کے اندر ابھی میں نے سینئر دیکھا ہوں، غلام پسکا سر، سلیم صاحب، منتجب سر، ہمارے جو پورا سٹاف ہے، ان کے سینے آپ لوگوں کو دیکھنے کے بعد اتنے چوڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ اندازہ لگا سکتے سر اتنی خوشی. وہ ریکنیکٹ کا تو ڈیفینیشن ہے، اکبر صاحب نے بنایا ہے، یا سمجھو غلام پسکا صاحب نے گوگل پہ پورا اپلیکیشن بنایا ہے. یہ ساری چیزوں کے علاوہ اللہ آدمی سے ملا ہے، دل بہت کم لوگوں سے ملا ہے. آدمی سے ملتا ہے مگر دل بہت کم لوگوں سے ملتا ہے. یہ ہمارا کریکٹر ہے. ہم لوگ جو کریکٹ ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے عالمین میں آنے سے پہلے آپ کس محلے میں رہتے تھے. کوئی کھڑکڑی پہ رہتا تھا، کوئی باغستان میں رہتا تھا، مگر اللہ نے ایک چھت کے نیچے ایک کلاس میں لایا. اس کے بعد ہم لوگ 10ویں سے شان سے پاس ہو کے چلے گئے. ہم شیواجی چلے گئے، ادے چلے گئے. اس کے بعد وہاں کا اسٹاف، وہاں کا بندے الگ ملے آپ. مگر آپ اندازہ لگا لو کہ یہ جو بیسیکلی آپ کے جو بچپن کے ساتھی ہیں وہ کھانا لگانے بھی ساتھ آئیں گے اور بریانی کھانے بھی ساتھ آئیں گے. یہ ہماری اصلیت ہے، ہمارے عالمین ہو یا کوئی بھی ہو. پر ریکنیکٹڈ کا علاوہ ہم عالمین میں جب اللہ نے ہمارے ایک جگہ ایک چھت کے نیچے ایک کلاس میں لائے تھے،
आज मैं इंजीनियरिंग में करता था, मतलब मेरा एक डेफिनेशन हाइब्रिड हूँ, मैं इंजीनियर प्लस डॉक्टर हूँ, मगर मुझे ये लगा कि मैं 125 की बैच में था, वहां पे मेरे पास जो आडवाणी का जो पीए था उसके बाजू में बैठता था मेरे, पर लास्ट तक ये नहीं बताया कि मैं आडवाणी का पीए हूँ, पीए का बेटा हूँ। अंदाजा लगाओ, ये जो कनेक्टेड 12th के बाद का होता है, 11th के बाद का, सॉरी 10th के बाद का, वो कनेक्शन दूसरा रहता है, मगर ये जो कनेक्शन अपना बेसिक था, अपन अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि हम लोग मुसलमान बनकर, मुसलमानों के साथ रहकर, हमारे तहजीब अखलाक को आलमीन के अंदर इतने अच्छे बुनियादी बनाकर जर्नलिस्ट बनाए, डॉक्टर्स बनाए, इंजीनियर बनाए, जो भी बनाए, और अल्लाह से आगे भी दुआ है मेरी कि इस हमारे इदारे को अच्छे से जो भी, और आपके सजेशंस हमारे लिए वेलकम है, और ये जो कनेक्ट है ये काफ़ी नहीं है आपके लिए, ये जो हमारे आप रिसिप्ट दी गई है, तो इससे और भी आपको कुछ देना चाह रहे तो अल्लाह से दुआ है कि वो चीज़ हमारे को आप गाइड करें, हम लोग आपका वेलकम करते हैं। इंशाल्लाह ये बात को मेरे ख़त्म करता हूँ, अल्लाह से शुक्र मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक छत के नीचे ईद के बाद आए और हमारे साथ इतना वक्त दिए, हमारे ज़िम्मेदारान हमारे साथ पे सभी है। अब इंशाल्लाह शुक्रिया के साथ अल्लाह से दुआ है। ताम नमाज भी किया गया है, मैं गेट पे ठहरा हूँ, किसी को जाने देने वाला नहीं हूँ, खाना खाने जाना है। छुट्टी नहीं लेंगे। मैं किसी को जाने देने वाले नहीं हूँ, पहले सब तैयार है, रेडी है, आप लोग पहुँचे।